Good afternoon, everyone. चलिए दोस्त, I welcome all of you to our CA Intermediate Financial Management and Economics batch starting from today. दोस्तों, ये है हमारे CA Intermediate का सबसे आखिरी पेपर, यानी कि पेपर नंबर 8. इसका वेटेज है 100 मार्क्स, जिसमें दोस्तों आपके साथ कुछ छुपाने वाली बात नहीं. इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वेटेज होता है 60 मार्क्स और इकोनॉमिक्स का वेटेज होता है 40 मार्क्स. दोस्तों, हम इस सब्जेक्ट को शुरू करें उससे पहले लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू. आई एम प्रवीण खटोड़ एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. I became chartered accountant in year 2005. So if we are right now studying in year 2021, so it's been 16 years since I'm a chartered accountant. And after becoming CA in year 2005, I had some options in front of me that what shall I do? After becoming CA, I was confused. Shall I go for practice? Shall I go for job? And you know what I did? Teaching. No. Okay. Though after becoming chartered accountant in year 2005, actually I went for job. I worked in Infosys at Bangalore, and there I worked for roughly 7 months. Then I moved to Mumbai. In Mumbai, I worked for a financial services company. There I worked for 1.5 years. And then I moved to America. There I worked for 2.5 years. While I was in America, I pursued 2 more degree courses. One of them is CFA and another one is CPA. CFA is Chartered Financial Analyst. CFA is considered as the topmost degree in the field of finance, right? Like for accounting, we have the topmost degree Chartered Accountant. In case of finance, the topmost degree is CFA. Then I also did CPA, Certified Public Accountant from USA. Like we have CAs in India, they have CPAs in America. After pursuing these 2 degree courses and staying there for 2.5 years, my heart said, come back to India, come back to my own country. Then I moved in India in year 2010. And from year 2010, since then, I am into teaching field. So it's been like 11 years. I teach so many subjects. One of them is financial management and economics. I teach costing. These are the 3 subjects I can say at CA intermediate level. And then I teach 2 more subjects at CA final level. One is strategic financial management and another one is strategic cost management and performance evaluation, also known as costing. So basically I teach FM and costing both at intermediate level as well as at CA final level. Okay. So that was all about me. Now let us move on to our subject. We are going to start CA Intermediate Financial Management as per new syllabus. The batch that we are providing you is fully updated, like study material 2021 has been issued by the CA Institute, and that is also incorporated in our batch. Okay. दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं, है ना, CA इंटरमीडिएट लेवल में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपकी पहले से ही जान पहचान के होते हैं. जैसे अकाउंट्स आप जानते ही हो आखिर क्या होता है, राइट. लॉ आपने पढ़ा ही हुआ है सीए फाउंडेशन लेवल पर, तो लॉ भी कोई आपके लिए बहुत नई चीज़ नहीं है ना. लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज समथिंग दैट इज़ अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू. तो दोस्तों, जब आप ये वर्ड सुनते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या वर्ड्स है दोस्त? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. क्या चीज़ आपके दिमाग में क्लिक होती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर. बताइए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सुनते से क्या आपके दिमाग में घूमता है? फाइनेंस से रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ बात करने वाले हैं. दोस्त, आप बताओ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, क्या पढ़ना चाह रहे होंगे हम? फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई कंपनी है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है और हम उनके फाइनेंसेस का कुछ मैनेजमेंट करेंगे. हाँ, और कोई बताना चाह रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सुनते से ही हमारे दिमाग में और क्या क्लिक होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हाँ जी बताइए. कुछ शेयर्स, इक्विटी, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, राइट. ओके, हाँ, पीछे आप बताओ यार, आप में से कोई बताओ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट डू वी मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ये क्या करने वाले हम यहाँ पर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजिंग द सोर्स ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मतलब कि दोस्तों पढ़ा हुआ है. ओके, तो दोस्तों
चलिए दोस्तों, तो अब हम यहाँ पर समझेंगे आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है ना। मैं इससे पहले कि दोस्तों किताबी बातें आपके साथ करना शुरू करूँ, राइट, किताबी बातें तो हमें पूरे सिलेबस में करना है, बट हम एक बेसिक फ्रेमवर्क यहाँ पर क्रिएट करना चाह रहे हैं कि आखिर मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत ही ज़िंदगी में क्यों है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके बिना भी तो मेरा गुजारा हो सकता है। अगर आपको एक नया बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस अगर आपको एक शुरू करना है, तो आपको क्या एक अकाउंटेंट की जरूरत है, क्या आपको एक ऑडिटर की जरूरत है, क्या आपको ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना जानता हो, या आपको सबसे ज्यादा जरूरत फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। क्योंकि अगर यही नहीं हुआ तो क्या तो लिखवाओगे आप अकाउंट्स, क्या करवाओगे आप ऑडिट, और क्या तो आप इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम टैक्स पे करोगे। तो दोस्तों जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं किसके इर्द गिर्द घूमते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इर्द गिर्द घूमते। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है तो लॉ भी नहीं है। फिर लॉ में आप कंपनीज एक्ट में कंपनी क्या क्रिएट करोगे, क्या कंपनी क्या फॉर्मेलिटीज करोगे, क्या उनके एनुअल रिटर्न्स आप फाइल करोगे, क्या आप ऑडिट करवाओगे। तो कोर कौन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और जिस कंपनी ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट संभाल लिया उसका तो अकाउंट्स होगा, उसका तो ऑडिट होगा, उसका तो टैक्स रिटर्न फाइल होगा, उसको तो लीगल कंप्लायंसेस की जरूरत पड़ेगी। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक कोर सब्जेक्ट है। और आप जिंदगी में कुछ भी करो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। आपने दोस्तों कभी ऐसा सुना होगा कि कोई व्यक्ति था जिसने कि आज से 10 साल पहले उसकी एक लेटे से किराना शॉप है ना, और किराना शॉप में वो सुबह 8 बजे आता है, अपनी शॉप ओपन करता है, और किराना शॉप में वो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक वो अपनी शॉप ओपन रखता है। यानी दिन में कितने घंटे काम करा उसने, सुबह 8 से रात के 8 तो 12 घंटे हो गए, वो तो 9 बजे तक ओपन रख रहा है। यानी कि डेली ही इज वर्किंग फॉर हाउ मेनी आवर्स, 13 आवर्स, राइट, ओके। डेली उसका कुछ सेल होता है और उस सेल पर उसका कुछ प्रॉफिट मार्जिन होता है। लेट अस से कि ये व्यक्ति महीने भर में 1 लाख रुपए कमाता है ना। एक स्मॉल किराना शॉप है, टर्नओवर होता है, उधारी लेनदारी, कुछ डूबत भी होती है, कुछ रखा हुआ गुड्स खराब भी हो जाता है। नेट प्रॉफिट कितना लेकर जाता है, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए लेकर जाता है, राइट, ओके। इस व्यक्ति की जो महीने की इनकम है ना 1 लाख रुपए, इसी व्यक्ति ने क्या किया था, आज से ठीक 10 साल पहले इसने एक साउंड डिसीजन लिया था। इसने आज से 10 साल पहले 10 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीदा। आज से 10 साल पहले 10 लाख रुपए में, 10 लाख रुपीज में ही बॉट अ प्लॉट। आज उसकी वैल्यू है 1 करोड़ रुपीस। मतलब अब देखना दोस्तों, कंपैरिजन बता रहा हूं मैं आपको, राइट। एक आम जिंदगी और एक मेंटो जिंदगी को मैं आपको कंपेयर करवा रहा हूं कि इस व्यक्ति ने अपनी किराना शॉप में कितना कमाया हर महीना, 1 लाख रुपीस। मैं साल भर कर रफली राउंड फिगर में उसको 10 लाख रुपीस बोलता हूं। तो इस व्यक्ति ने 10 साल में अगर 10-10 लाख रुपए भी इकट्ठे करे तो 10 साल में कितने हो गए, 1 करोड़। और वही 1 करोड़ किसने भी दिए, प्लॉट ने भी दिए। लेकिन दोनों कमाई में डिफरेंस समझ रहे हो। वैसे आप अपनी जिंदगी में कौन से 1 करोड़ रुपए पसंद करोगे, सुबह 8 से रात के 9, या फिर वन टाइम साउंड फाइनेंशियल डिसीजन। One time sound financial decision is what everybody would prefer. काफी सारे ऐसे लोग हैं जो दिन रात मेहनत करने को कहते हैं कि यार क्यों दिन रात मेहनत कर रहे हो, हमारी कर रहे हो, उसकी बजाय कहीं सही जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दो। कई सारे आपने ऐसे किस्से सुने होंगे कि इस व्यक्ति ने MRF का शेयर आज से 20 साल पहले 1 लाख रुपए MRF के शेयर में डाल दी, और अब इसके पास इतनी धन दौलत इकट्ठी हो गई है कि इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राइट। ऐसा सुना है क्या आपने कभी, राइट। क्या आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हो जिंदगी में? हाँ जी। क्या ये ऑडिट में सिखाया जाएगा, क्या ये आपको अकाउंट्स वाले सिखाएंगे, क्या ये लॉ वाले सिखाएंगे? दोस्तों कहाँ सीखेंगे वो, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज की टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ। यार आप ही बताओ ना, आप सीए क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के, राइट। पैसा कमाने के 2 तरीके, या तो दिन भर मेहनत करो और पैसा कमाओ, या फिर अपने आप के डिसीजंस को इम्प्रूव कर लो।
करेक्ट डिसीजन ले लिया ना तो पैसा ऑटोमेटिकली आता है, राइट। वही तो हम यहाँ पर सीखेंगे कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, ओके। देखो यार, मेहनत तो हर इंसान करता है। जो ठेला गाड़ी भी चला रहा है ना, उसकी मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है। जो किसी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पर वो तगारियाँ उठा रहा है, क्या उसकी मेहनत में कोई कमी है? तो मेहनत तो वो भी 12 घंटे कर रहा है, राइट। लेकिन हमें क्या करना है? हमें दिमागी मेहनत करनी है, राइट। हमें अपने आप के डिसीजंस को इम्प्रूव करना है, फाइनेंशियल डिसीजंस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि माना अपने मेन बिजनेस से तो कम कमाते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट से काफ़ी बड़ा पैसा कमा लेते हैं। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप सभी अपने दिमाग में आपके किसी ऐसे रिलेटिव का ख्याल कीजिए जिनके पास अच्छा खासा पैसा, आपको लगता हाँ ये हमारे रिलेटिव, इनके पास अच्छा खासा पैसा। फॉर एग्जांपल हमारे मामा जी हो गए, हमारे फूफा साहब हो गए, कोई हाँ आया कोई किसी का आपके दिमाग में? यस। नाउ थिंक कि उनका जो मेन बिजनेस है, उनकी जो भी टोटल वेल्थ है, आई डोंट नो कि उनकी कितनी टोटल वेल्थ है, राइट। मान लो मैं छोटा सा नंबर लेता हूँ, लेट से उनकी 10 करोड़ की टोटल वेल्थ है, या चलो 50 करोड़ की टोटल वेल्थ है। तो उस टोटल वेल्थ में क्या उन्होंने एक एक रुपया अपने बिजनेस से कमाया है? नहीं। इनफैक्ट ऐसा भी नहीं है कि आधा बिजनेस से कमाया और आधा इन्वेस्टमेंट से कमाया। मैं आपको बता देता हूं कि 80% ऑफ द वेल्थ उन्होंने कहां से कमाई है? इन्वेस्टमेंट से। डू यू एग्री विथ मी? यस। तो आप आपकी लाइफ में जितनी भी धन दौलत इकट्ठी करेंगे ना, उसका सिर्फ 20% ही आपके रेगुलर बिजनेस से आना है। 80% इनकम कहाँ से आनी है? इन्वेस्टमेंट से आनी है। और वो इन्वेस्टमेंट पार्ट अगर हम मिस कर गए तो फिर हम वही रेगुलर काम करते रहेंगे, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सीखेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। सर आप बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं कि पैसा लगाना चाहिए और पैसों से पैसा कमाना चाहिए, ये तो हमने भी कभी सुना हुआ है। डोंट वर्क फॉर मनी, लेट द मनी वर्क फॉर यू। डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। तो फिर सर आप क्यों पढ़ा रहे? ऐसा आया क्या ख्याल आपके दिमाग में? तो दोस्तों, एक बात, आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी लाइफ को 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। लेट अस से कि आपकी लाइफ 60 ईयर्स से एनीवेयर बिटवीन 75 ईयर्स ऑन एन एवरेज हमारी हम लाइफ मानकर चलते हैं, राइट। ओके, 60 ईयर्स से 75 ईयर्स। तो आप इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, यानी रफली 20 to 25 ईयर्स, है ना। जिंदगी के 3 फेज होते हैं। सबसे पहला फेज 1, जो कि 20 से 25 साल की उम्र तक चलता है। सेकेंड फेज को मैं मानता हूं कि वो रफली 40 से 45 ईयर्स की एज तक चलना चाहिए। और फिर थर्ड फेज आता है आफ्टर 40 ईयर्स या फिर आफ्टर 45 ईयर्स। फर्स्ट फेज में हमें खूब पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, काफी सारा नॉलेज इकट्ठा करना चाहिए, हमें काफी सारी नई नई चीजें सीखनी चाहिए। चीजों को सीखने के लिए हमें एक पैशन होना चाहिए। कब? शुरू के 20 से लेकर 25 साल तक काफी सारा नॉलेज जब आप गैदर करेंगे, क्योंकि यही वो उम्र है जब आप बहुत सारा नॉलेज गैदर कर सकते हो, आपके पास समय भी है, राइट। तो फर्स्ट 20 to 25 ईयर्स हमें काफ़ी सारा नॉलेज गैदर करना चाहिए, काफ़ी सारा पैशन हमें होना चाहिए सीखने के लिए। कोई भी नई चीज़ आप सीखोगे, क्योंकि वो आपके सेकेंड फेज में काम में आने वाली है। 20 से 25 साल की उम्र लगभग वो साल है जब तक आप सीए बन भी जाओगे, राइट। अब इसके बाद शुरू होता है सेकेंड फेज। डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। इसके लिए पहले मनी तो होना चाहिए, राइट। अरे अगर आपने 100% रिटर्न कमाने की अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ ली, लेकिन जेब में सिर्फ 100 रुपए रखे हैं, तो 100 का 200 ही तो होगा। तो पहले जेब में पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, और ये हम करते हैं हमारे सेकंड फेज ऑफ लाइफ में, जो कि रफली 20 to 25 ईयर्स से शुरू होना चाहिए और 40 से 45 ईयर्स में लग रहा हूँ ना इसी उम्र का, इसके बीच तो 20 से 25 से लेकर 40 से 45 के बीच में हमें पैसों के लिए काम करना चाहिए। यानी कि अगर आप सीए इन प्रैक्टिस हो, आपको खूब जोरों शोरों से प्रैक्टिस अपनी जमानी चाहिए, या आप जॉब कर रहे हो तो आपको उसमें खूब तरक्की करनी चाहिए, या आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपना बिजनेस चला रहे हो तो आपको उसको सेट करना चाहिए। लेकिन 40 से लेकर 45 ईयर्स की एज तक आपके पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाना चाहिए कि फेज 3 में
हमें कुछ भी काम करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अब अगर आपने 40 से 45 ईयर्स की एज तक पैसा इकट्ठा नहीं करा तो फिर ज़िंदगी में आप वही करते रह जाओगे जो आप अभी तक करते आ रहे थे। तो दोस्त, ज़िंदगी भर थोड़ी ना काम करना है, राइट? 60 65 70 साल तक हमें थोड़ी ना काम करना है। हम पढ़ लिख क्यों रहे हैं? तो हम शुरुआत में 25 से लेकर 40 45 तक पैसा इकट्ठा करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो पैसा इकट्ठा करोगे उसको सही ढंग से इन्वेस्ट करना है, नहीं तो थर्ड फेज में भी हम मजबूरन हमें वही करना पड़ेगा जो हम अभी तक करते आ रहे थे। तो दोस्तों, ये स्किल हम यहाँ पर सीखते हैं कहाँ पर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। सर, हमें तो ऐसा लग रहा है कि बस ये इंटरमीडिएट का फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप हमको फटाफट पढ़ा दो और हम इन्वेस्टमेंट करना सीख जाएंगे। ओह दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीए इंटरमीडिएट में भी है और सीए फाइनल में भी, लेकिन किसी भी चीज़ में प्रो बनने के लिए, राइट, अगर आपको प्रो बनना है तो पहले आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर सीए इंटरमीडिएट में हम हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पर काम करते हैं, अंडरस्टैंडिंग पर काम करते हैं। मैं आपको इन्वेस्टमेंट करना सिखाऊं उससे पहले मुझे आपको कंपनी की बैलेंस शीट तो पढ़ते याद करवाना पड़ेगा ना, कि कंपनी की बैलेंस शीट को कैसे देखना। अगर इन्वेंट्री इस कंपनी की चेंज हो रही तो इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, आपको कुछ रेशियोज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पर जो हम सीए इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं वो हम बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, और ये बेसिक चीज़ों को फिर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में ट्रांसलेट करते हैं, कहाँ पर जाकर? हमारे सीए फाइनल में। यानी मैं ऐसा मानता हूँ कि जो बच्चा सीए फाइनल का फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक ढंग से पढ़ चुका है, अब उसको किसी का मोहताज रहने की जरूरत नहीं है जिंदगी में। क्योंकि अगर आप ऑडिटर बनना चाहते हो तो आपको क्लाइंट की जरूरत है, अगर आप इनकम टैक्स प्रैक्टिस करना चाहते हो आपको क्लाइंट की जरूरत है। लेकिन अगर आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको किसी व्यक्ति की कोई गरज नहीं है, आपको सिर्फ नॉलेज गैदर करना है, और थोड़ा बहुत पैसा हमें चाहिए, थोड़े बहुत पैसे चाहिए, नॉलेज चाहिए, जिंदगी भर हम पैसा छाप लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, राइट? अब सवाल ये उठता है कि सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही फिर पूरे 100 मार्क्स का दे देता ना सी इंस्टीट्यूट, जब इतनी शानदार चीज़ें। इकोनॉमिक्स क्यों आखिर 40 मार्क्स का डाला? क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स के बिना अधूरा है। अगर हमें इंडियन इकोनॉमी की समझ ही नहीं होगी, हम डिसीजंस आखिर कैसे लेंगे? हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनका नॉलेज होना चाहिए, राइट? तो हमें फॉरेन पॉलिसीज़ का नॉलेज होना चाहिए, फॉरेन ट्रेड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, राइट? तो दोस्तों, ये सारे नॉलेज भी एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर आपको बनाते हैं। यानी इकोनॉमी में क्या डिसीजन है, आरबीआई ने क्या पॉलिसी डिज़ाइन की है, उसके क्या क्या इम्प्लीकेशन होंगे, ये तो पता होने चाहिए, राइट? और ये कौन सिखा सकता है? ये अकाउंट्स वाले नहीं सिखा सकते, नो, ऑडिट वाले नहीं सिखा सकती। या अगेन कौन सिखाएगा आपको? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट? सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स का दोस्तों चोली दामन का साथ है। 60 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, 40 मार्क्स का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, सीए फाइनल में 100 मार्क्स का स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, और फिर जिंदगी भर वो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने सीखा है हम उसको यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। आप भी जानते हो इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ज़िंदगी में 1 करोड़ रुपए कमा भी लिए लेकिन उस 1 करोड़ को आप सही जगह पर नहीं लगा पाए तो आपकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो दोस्तों, ये सब्जेक्ट पैसा कमाना भी सिखाता है और पैसे को लगाकर फिर से पैसा कमाना भी हमें सिखाता है। इज दैट क्लियर? राइट, ओके। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या बात करी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात करी, राइट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर मैं आपके जॉब के एंगल से भी बोलूँ तो जो सबसे ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स होती है ना, तो सबसे ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड में होती है, क्योंकि हर किसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, देश की सरकार को भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। आपको पता होगा कि केंद्रीय मंत्रालयों में से जो सबसे इम्पोर्टेंट मंत्रालय होते हैं वो एक तो होता है रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, और दूसरा होता है
फाइनेंस मिनिस्ट्री, राइट। तो दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री, राइट, देश का फाइनेंस संभालने के लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था की गाड़ी गड़बड़ा गई तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, राइट। तो दोस्तों हमें तो अभी देश की अर्थव्यवस्था की बागडोर नहीं संभालनी, हमें तो अपनी अर्थव्यवस्था संभालनी। हम तो इतना भी संभाल ले तो हमारे लिए बहुत हो जाएगा, और हम यही अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डेवलप करना चाह रहे हैं। इज दैट क्लियर, राइट? ओके दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओके, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। चलिए दोस्तों, तो अब मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सबसे पहले आपको सिलेबस से वाकिफ करवा देता हूं कि आखिर हम यहाँ पर सिलेबस में क्या क्या पढ़ना चाह रहे हैं, राइट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हम इसको किस तरीके से कवर करेंगे। ओके, तो दोस्तों ये जो सिलेबस है आपका, सिलेबस पूरी तरीके से कंपनी की बैलेंस शीट के इर्द गिर्द घूमता है। उसके पीछे मैं आपको कारण बता देता हूँ। अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करोगे आप? मैंने आपको बोला चलो रिलायंस के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, तो कैसे आप डिसीजन लोगे कि मुझे उनके शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं? यू आर गोइंग टू गो थ्रू देयर बैलेंस शीट, गो थ्रू देयर एनुअल रिपोर्ट्स। तो उसकी समझ के लिए आपको बैलेंस शीट समझ में आनी चाहिए कंपनी की, राइट। आपको उनके एनुअल रिपोर्ट समझ में आने चाहिए, राइट, है ना। तब तो जाकर हम सीए फाइनल में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें कर पाएंगे, राइट। नहीं तो मैं इधर बोलूंगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रेशियो, आप बोलेंगे अरे अभी तो रेशियो में ही मेरे प्रॉब्लम है, राइट। तो यहाँ पर सीए इंटरमीडिएट में क्या करते हैं, हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हम यहाँ पर बनाते हैं, और उन बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर फिर हम हमारी ऊंची इमारत बनाते हैं इन्वेस्टमेंट की, राइट। तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो पूरा किसके इर्द गिर्द घूमेगा दोस्तों? कंपनी की बैलेंस शीट के आसपास घूमेगा, ठीक है। कंपनी की बैलेंस शीट मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है कि कंपनी की बैलेंस शीट में इस तरफ होता है लायबिलिटीज, उस तरफ होता है एसेट्स, राइट। और लायबिलिटीज में भी दो चीजें होती है, राइट। एक तो होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में दोस्तों क्या क्या आ जाते हैं? जैसे इक्विटीज है ना। तो इक्विटी तो ओनर होता है, राइट, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देता है, या फिर प्रेफरेंस हुआ, या फिर डेट हुआ। डेट में हो सकता है कि हमने बॉन्ड्स इशू करे हुए हो, हमने डिबेंचर्स इशू करे हुए हो, या फिर हमने बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ हो, राइट। ओके, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज से कंपनी की गाड़ी नहीं चलती, कहीं ना कहीं हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस की भी जरूरत होती है, राइट, एंड वी टर्म देम एज करेंट लायबिलिटीज, राइट। ओके, इस तरफ आते हैं दोस्तों बैलेंस शीट के, तो आपको दो तरह की एसेट्स नजर आने वाली है, एक तो फिक्स एसेट्स और दूसरा करेंट एसेट्स, ठीक है। ये तो मैंने, ये आपका सिलेबस नहीं लिखा है, तो मैंने बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर यहां पर बताया है, राइट। अब हम दोस्तों यहां पर समझेंगे कि आखिर हमारा सिलेबस क्या है। ओके, मैं सिलेबस आपको बताऊं उसके लिए मुझे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन बतानी जरूरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आखिर क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। क्या बोल रहा हूं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स and effective utilization of those funds in order to achieve the basic objective of financial management, that is wealth maximization. फिर से, financial management deals with procurement of funds and utilization, effective utilization and effective utilization of those funds in order to achieve the basic objective of financial management, that is वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये होती है दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन। क्यों ना हम शुभ मुहूर्त हमारी कॉपियों का इसी डेफिनेशन के साथ करें दोस्तों। क्या जब मैंने डेफिनेशन बोली तो आपको बैलेंस शीट का कुछ फील आया? देखा जाए तो हमने बैलेंस शीट की ही तो बात करी। बैलेंस शीट क्या है, लायबिलिटी साइड क्या है, एसेट साइड क्या है, और इस पूरे का मकसद आखिर क्या है, ठीक है दोस्तों। लिखेंगे हम डेफिनेशन यहां पर। ओके, हाँ जी, लिखेंगे हम यहाँ पर डेफिनेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट deals with, financial management deals with procurement of funds and effective utilization of those funds.
to achieve the basic objective of wealth maximization. To achieve the basic objective of wealth maximization. यानी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस डेफिनेशन में 3 कंपोनेंट्स है. सबसे पहला कंपोनेंट डील्स विद प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स. द सेकेंड कंपोनेंट डील्स विद effective utilization of those funds, and the third component is wealth maximization. ठीक है, ओके. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कह लूँ या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कह लूँ, बात तो एक ही है. अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं. जमीन आसमान का अंतर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में. और यह समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है. समझते दोस्तों, आज हम आके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है. आपने दोस्तों व्हाट्सएप के बारे में, है ना, व्हाट्सएप तो ऑलमोस्ट हर कोई चलाता ही है. ओके, व्हाट्सएप की एप्लीकेशन, है ना, ऑलमोस्ट हर किसी के सेल फोन में है व्हाट्सएप, राइट. ओके, इनफैक्ट जब भी हम कोई नया सेल फोन भी लेते हैं तो सबसे पहले कुछ जो चुनिंदा 2-4 एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं. सबसे पहले बेसिक, जिसके बिना फ़ोन ही अधूरा है, उसमें काउंट होती है व्हाट्सएप की एप्लीकेशन, है ना. ओके दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाट्सएप को आप 1 भी रुपया देते हैं क्या? क्या आप में से एक ने भी 1 भी रुपया कभी व्हाट्सएप को दिया है? नहीं, मैंने भी नहीं दिया, राइट. मुझे ध्यान है दोस्तों, जब पहली बार व्हाट्सएप डाउनलोड किया था तो उन लोगों ने बोला था कि ये 1 ईयर के लिए फ्री है. ऐसा कुछ याद है क्या आपको कि 1 साल के लिए व्हाट्सएप फ्री है और सेकेंड ईयर से हम चार्ज करेंगे आपसे 500 रुपीज़? ऐसा आप में से किसी को याद है क्या? व्हाट्सएप ने शुरुआत में जब नई नई एप्लीकेशन आई थी उन्होंने बोला था 1 ईयर के लिए फ्री है और सेकेंड ईयर से हम 500 रुपीज़ चार्ज करेंगे. हमने कहा चलो 1 साल तो चलाए, तब की तब देखेंगे बाद में. हमने उसको 1 साल पूरा प्रॉपर चलाया और उसके बाद व्हाट्सएप से नोटिफिकेशन आ गया कि आपका 1 ईयर का ट्रायल पीरियड एक्सपायर हो गया, नाउ पे अस 500 रुपीज़. क्या आप में से किसी ने भी 500 रुपये दिए? नहीं, मैंने भी नहीं दिए. पता है हमने क्या किया? इसको अनइंस्टॉल करके हमने फिर से रीइंस्टॉल कर लिया. तो दोस्तों, आपने, मैंने आज तक 1 भी रुपया व्हाट्सएप कंपनी को नहीं दिया. कभी आपने सोचा है कि व्हाट्सएप जो एप्लीकेशन है उसको सपोर्ट करने के लिए कितना सारा उनका खर्चा लगता होगा? उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनके डेटा सर्वर हैं. व्हाट्सएप की एप्लीकेशन वो कभी भी डाउन नहीं जाती. मतलब इतना कंटिन्यूस सपोर्ट, इतना एफिशिएंट सपोर्ट वो दे रहे हैं. डेटाबेस रहता है उनके पास काफ़ी सारा, डेटा के सर्वर की कॉस्ट रहती है, राइट. अगर कंपनी पैसा क्यों नहीं लेती है? कंपनी ने आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया और दुनिया में किसी भी व्हाट्सएप यूज़र से उन्होंने 1 भी रुपया नहीं लिया. इनफैक्ट व्हाट्सएप पर तो एडवर्टीजमेंट्स भी नहीं आते हैं क्या व्हाट्सएप पर? कब भी एडवर्टीजमेंट, ऐसा नीचे छोटा सा एडवर्टीजमेंट व्हाट्सएप पर नहीं आता, राइट. यानी व्हाट्सएप का जब आप P&L देखोगे, इनकम स्टेटमेंट देखोगे, तो उनकी रेवेन्यू साइड दिखेगी 0 रुपीज़, जीरो, कई सालों तक 0 रुपीज़. बट फिर भी उनके एक्सपेंसेस हैं. पर आपको पता है कि व्हाट्सएप ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनको पता था कि कोई आएगा, और आया फेसबुक. कोई आएगा जो हमसे हमारी एप्लीकेशन खरीद कर जाएगा. और आपको पता है फेसबुक ने व्हाट्सएप को कितने में खरीदा? फेसबुक ने व्हाट्सएप को आखिर कितने में खरीदा? रफली 1,20,000 करोड़ में. कितना? छोटी सी एप्लीकेशन यार, हाँ, मैसेजिंग, चैटिंग, 1,20,000 करोड़. थिंक अबाउट दिस कि अगर व्हाट्सएप लालच करता और व्हाट्सएप हमसे बोलता नहीं 500 रुपीज़ तो आपको साल भर के देनी पड़ेंगे क्योंकि आप आपके वो मैसेजेस के पैसे भी तो बचा रहे हो और हम आपको मैसेजिंग एप्लीकेशन दे रहे हैं, यहाँ पर आप ग्रुप बना सकते हैं, सो ऑन वट एवर, राइट. 500 रुपये तो दो प्लीज़. हम क्या करते हैं? हम व्हाट्सएप को करते हैं अनइंस्टॉल और हम चल जाते हैं वीचैट पर, या हम चल जाते हैं और किसी स्नैपचैट पर, हम किसी दूसरी एप्लीकेशन पर चल जाते हैं, हम टेलीग्राम पर अपना अकाउंट बना लेते हैं, वहाँ हम ग्रुप बना लेते हैं. करते कि नहीं करते? 500 रुपये कौन देता? और फिर भी कुछ लोग देते, राइट.
क्या व्हाट्सएप के आज की तारीख में दुनिया भर में जितने सब्सक्राइबर्स हैं, जितने लोग व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं, यू कैन थिंक ऑफ इट राइट, भारत की आबादी 125 करोड़, जिसमें से कई करोड़ लोग व्हाट्सएप को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। दुनिया भर में तो सैकड़ों करोड़ लोग व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं। क्या इतने करोड़ यूज़र उनके होते अगर वो पैसे लेते? तो नहीं होते। क्या फेसबुक फिर उनकी इज्जत करता? नहीं, क्योंकि वो छोटा लेवल पर ऑपरेट करते हैं। यानी व्हाट्सएप नाम की कंपनी कुछ 200-500 करोड़ रुपए प्रॉफिट तो कमा लेती, लेकिन वेल्थ नहीं कमा पाती। क्या हल्का फुल्का डिफरेंस समझ में आ रहा है कि आपको? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि मैं इस ईयर के P&L अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि मैं ओवर द लाइफ ऑफ माय बिजनेस ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं। तो दोस्तों वो काम कहां पर होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। व्हाट्सएप अगर पैसे चार्ज करता तो सिंपल सी बात है, उसके उतने सब्सक्राइबर्स ही नहीं होते और उसका स्केल छोटा होता और वो 200-500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट तो कमा लेता। लेकिन फेसबुक को डर ही नहीं लगता व्हाट्सएप से। क्यों? क्योंकि वो छोटा प्लेयर है, राइट? दोस्तों हमारा जिंदगी में मकसद क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? चलो बताओ यार। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमारा अल्टीमेट गोल है। अमेजॉन बताओ, इंडिया में अमेजॉन प्रॉफिट मेकिंग या लॉस मेकिंग? लॉस मेकिंग। अमेजॉन कई सालों तक लॉस पे लॉस इनकर करता रहा। अभी जरूर वो लोग अमेरिका के लेवल पर जाकर प्रॉफिटेबल आए हैं, लेकिन कई सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर आज भी अमेजॉन लॉस में काम कर रहा है। आप जानते हो क्यों? क्योंकि वो अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे, वो अपना मार्केट कैप्चर कर रहे। उनको पता है कि एक बार व्यक्ति ने ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू करी, वो अगली बार भी आएगा और फिर से आएगा और हम उससे ओवर द लाइफ पैसा कमा लेंगे। अगर अमेजॉन आज प्रॉफिट का लालच करेगा तो वो इतने स्केल पर पहुंच ही नहीं पाएगा। दोस्तों रिलायंस जियो, शुरुआत में रिलायंस जियो ने दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट सिम क्यों दी? अगर वो लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर फोकस करते हैं, वहां पर अगर कोई ऐसा फाइनेंशियल मैनेजर होता जो बोलता नहीं मिस्टर मुकेश अंबानी, वी हैव टू अर्न प्रॉफिट्स, वी हैव टू मेक प्रॉफिट्स, आवर ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो क्या आज वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर पाते? नहीं, राइट? वो सिर्फ वहीं पर ही रह जाते। आज जो दोस्तों रिलायंस जियो के पास 30 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, मुश्किल से वो 2-3-4 करोड़ पर पहुंचते। दोस्त तुमने भी अगर रिलायंस जियो की सिम ली तो क्या रिलायंस जियो उतना चार्ज करता जितना एयरटेल आइडिया चार्ज करता? क्या तुम सिम लेते रिलायंस जियो की? नहीं लेते। अरे हमने सिम ही क्यों ली? और मैं आपकी क्या बात बताऊं, मैं तो खुद यार जब 2016 में उनका रिलायंस जियो का ऑफर आया था ना कि 3 महीने तक सब कुछ फ्री, मतलब कॉलिंग फ्री, मैसेजिंग फ्री, वीडियो कॉल फ्री, इंटरनेट फ्री, एवरीथिंग वाज फ्री, मैंने कैलकुलेशन लगाया यार, मज़ा आ गया। अपना हर महीने का ना, उस वक्त आपको पता होगा, उस वक्त आपको 300 MB डेटा वाउचर लेना पड़ता था, उसके 300 रुपीज़ लेते थे वो लोग, एयरटेल और आइडिया वाले। हाँ, और हम कैसा डेटा बचा बचा कर यूज़ करते थे। जैसे ही डेटा का काम हुआ, टर्न ऑफ द डेटा। 300 MB डेटा में हम महीना भर गुजारते थे। भूल गए वो दिन? आज 300 MB में कुछ नहीं होता, इतना तो ऐसे साफ कर देते हम, 5 मिनट में पानियों की तरह हम डेटा को बहाते हैं, राइट? दोस्तों जब हमने देखा 1.5 GB डेटा मिल रहा है, फ्री कॉलिंग मिल रही है, मैंने भी कैलकुलेशन किया यार, मेरा महीने का मोबाइल का ओवरऑल बिल आता है 1500 रुपीज़। क्योंकि उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था कि 399 और 499 का रिचार्ज करो और कर लो जितनी बात, उस वक्त हर सेकंड का पैसा लगता था। याद करो वो दिन। तो मैंने कहा यार मेरा 1500-2000 रुपीज़ का बिल आता है और 3 महीने की बात है, 3 महीने में मेरा 6000 रुपये का बिल आएगा। क्यों ना मैं रिलायंस जियो की सिम अपने सेलफोन में डाल लूँ और इसी को यूज़ करूँ आउटगोइंग कॉल के लिए, इनकमिंग इस पर आते रहेंगे। जाना पहचाना सा लग रहा है? तो दोस्तों मैंने भी ऐसा ही दिमाग लगाया, मैंने कहा 6000 रुपये प्रवीण, अगर अपने 6000 रुपये 6000 रुपीज़ बच गए, है ना, तो देखा जाए तो बढ़िया काम हो गया अपना। वैसे भी अपन कितना कमाते हैं, एक आम शिक्षक की इनकम कितनी होती है तो आपको भी पता है। तो मैंने उसको डिवाइड किया 30 से। मैंने कहा यार प्रवीण, अगर अपन ने आज का दिन रिलायंस जियो की सिम को खरीदने में भी लगा दिया तो भी अपन नुकसान में नहीं रहेंगे।
मैं अपना आधार कार्ड लेकर वहाँ पर कतार में खड़ा हो गया। आपको पता होगा कतारें लग रही थी उस वक्त। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपन कतार में खड़े रहेंगे, 15 लोग आगे खड़े, 4 घंटे भी लगे तो कोई बात नहीं, 6000 रुपीज़ मैंने बचा लिए, जो बचाया सो ही कमाया। मैं वहाँ पर कतार में लगा, आधा पौना घंटा हो गया, मेरा दिमाग काम करने लगा। मैंने कहा वाह, ये वो कंपनी है जिसने आते से ही तहलका मचा दिया, जिसके लिए यहाँ पर जिस सेंटर पे मैं खड़ा हूँ वहाँ तो लाइन लग रही है, लेकिन मैंने देखा कि शहर के हर सेंटर में वो लाइन है। मैंने मेरे 1-2 पहचान वालों को पूछा, यार कुछ जुगाड़ है क्या, जियो की सिम की बहुत लाइन है, मतलब जुगाड़ लगानी पड़ेगी। और मैंने देखा यही आलम तो देश भर में भी है, खबरें छप रही पेपर में कि रिलायंस जियो की सिम नहीं मिल रही है, उसके लिए बहुत लंबी लाइन वेटिंग है। मैंने दिमाग चलाया, प्रवीण अब अपने को प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करना, ये 6000 रुपये नहीं बचाने। मैं गया फटाफट मेरे डीमैट अकाउंट में, मेरे ब्रोकर के अकाउंट में, और मैंने कहा खरीदो। क्या करो? रिलायंस का शेयर खरीदो, क्योंकि जिस कंपनी के प्रोडक्ट की इतनी जबरदस्त डिमांड है, जिस कंपनी ने आते से ही एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन सबको धूल चटा दी, ये कंपनी तो अब धमाका करेगी। एक काम करो, इस कंपनी का कुछ स्टेक ले लो, इस कंपनी की प्रोग्रेस में हम भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लो। और मैंने सही में वहां पर उस वक्त 800 रुपीज़ का था रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर। कितने का? 800 रुपीज़ का था दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर। वो 800 रुपीज़ का शेयर मैंने खरीदा। उसके बाद वो शेयर रफली 1700-1800 तक गया। फिर उसको स्प्लिट किया गया, मतलब बोनस दिया गया, लेट अस से 1:1 के रेशियो में। तो मेरे पास जितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, अब उसके डबल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। खैर उसकी प्राइस वापस से कहाँ आ गई? 800-900 पर आ गई। और आज की तारीख में जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो वो शेयर अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपीज़ प्लस का है। मैं 2000 ही लेता हूं। तो आप खुद सोचो यार, मैंने 800 रुपीज़ में शेयर खरीदा, लेकिन पर शेयर 800 में खरीदा, बट मेरे अब नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो गए हैं। तो या तो मैं 2000 रुपीज़ को 2000 नहीं मानूं, उसको कितना मान लूं? एक तरीके से मेरे लिए तो वो क्या है? 4000। 800 में खरीदा, कितना हो गया? 4000। कितना गुना? 5 टाइम्स इन लेस देन 5 ईयर्स। इन लेस देन 5 ईयर्स विद डिविडेंड जो मिला है इस बीच 5 सालों में, मैं तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो दोस्तों ऐसा आपका दिमाग चलना चाहिए, राइट। वी हैव टू वर्क ऑन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और ये हकीकत का किस्सा है, मैंने रिलायंस जियो के उस वक्त ही शेयर खरीद ली, और अभी बीच में मैंने क्या करा, एयरटेल के जब शेयर्स नीचे आने लगे, मतलब 2019 में भी वो रफली 400 से नीचे मिल रहा था एयरटेल का शेयर। मैंने दिमाग लगाया, एयरटेल वो कंपनी है जिसने कि 4 साल तक रिलायंस जियो ने जो टफ कंपटीशन दिया उसको उन्होंने सस्टेन कर लिया। तो अब ये कंपनी बाजार से उठने वाली नहीं है, अब ये कंपनी टिक जाएगी। और फिर मैंने देखा डेटा इज द फ्यूचर। आज आप लोग कुछ भी करते हो, आपका लाखों रुपए का भी सेलफोन हो ना, तो बिना डेटा के कुछ भी नहीं है, डब्बा है। आप अपना सेलफोन निकालते हो, सबसे पहला आप यूज ही क्या करते हो? डेटा। यानी बिना टेलीकॉम कंपनीज के हमारा सेलफोन कुछ भी नहीं है। दोस्तों आप वीडियो लेक्चर्स भी देखते हो, उसको अगर आप डाउनलोड भी करते हो तो यू नीड डेटा। अगर आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी करना है, यू नीड डेटा। आपको इंस्टाग्राम भी चलाना है, यू नीड डेटा। व्हाट्सएप भी चलाना है, यू नीड डेटा। सारी बैंक्स जो इंडिया में है वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, किसकी बदौलत? डेटा। आई फाउंड एन अपॉर्चुनिटी कि यार कुछ भी करो, वी नीड डेटा। बिना डेटा के तो कुछ है ही नहीं। हर किसी को डेटा की जरूरत है, और ये डेटा प्रोवाइड करने वाली गिनी चुनी कंपनीज अब भारतवर्ष में बची है। आप ही नाम बता दोगे, एक तो रिलायंस बचा है, एक एयरटेल बचा है, और वोडाफोन आइडिया बचा है। BSNL को अभी हम काउंट भी नहीं करते, राइट। तो दोस्तों ये 3 ही तो कंपनीज हैं। आपने जो लॉकडाउन का समय गुजारा, किसके भरोसे गुजारा? डेटा। एक दूसरे से आप वीडियो कॉल पर बात करते थे, राइट। कैसे कटा हमारा लॉकडाउन? नहीं तो क्या होता हमारा अगर डेटा नहीं होता तो? कैसे निकलता ये समय? आजकल जब आप टीवी भी देखते हो तो आपको पता है एयरटेल का
राइट हम वहाँ पर डिश टीवी एट्सेट्रा एयरटेल का हम वहाँ पर एंटेना लगाते हैं, तो वो भी किससे आ रहा है? अब डेटा से। अब हमें केबल्स की ज़रूरत नहीं है, अब तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हो जाती है। डेटा, नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं, क्या है? डेटा। आई थॉट कि यार डेटा देने वाली कंपनीज की मोनोपोली हो जाएगी। अगर रिलायंस ने आपसे 500 रुपीज़ पर मंथ भी मांगे ना, बेचारे अभी तो वो आपसे 200 रुपये महीना ही मांगते हैं, वो अगर 500 रुपीज़ पर मंथ भी मांगे ना, तो आप देने पर मजबूर हो जाओगे। अदरवाइज यू विल लूज कनेक्टिविटी विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर रिलेटिव्स, एवरीबडी। 500 पर मंथ भी अगर आपसे मांगे, आप दोगे? आप बोलोगे इतना उसका यूटिलिटी, मुझे डेटा मिल रहा है, मैं ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ ऑनलाइन, सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा अगर डेटा नहीं हुआ। तो आप ऑनलाइन बैंकिंग कैसे करोगे? जाना पड़ेगा फिर बैंक, उतना पेट्रोल लगेगा, पेट्रोल भी महंगा होता चला जा रहा है। ऑनलाइन लोगों की मीटिंग हो रही है, जूम मीटिंग हो रही है, सब क्या है दोस्तों? ये डेटा। इस डेटा पर ही तो सब कुछ टिका हुआ है। आप अगर ऑनलाइन कैब बुक करवाते हो, क्या है दोस्तों? ये डेटा, राइट। आई थॉट कि यार डेटा पर ही तो सब कुछ टिका हुआ है, व्हाई नॉट बाय द शेयर्स ऑफ सच कंपनीज जो कि डेटा प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि अब वो गिनी चुनी कंपनीज हैं। एंड थिंक अबाउट दिस कि क्या अभी कोई भी एक और ऐसी कंपनी है जो मैदान में आने वाली है? कोई नहीं आएगा। आपको पता है रिलायंस जियो ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में? 2 लाख करोड़। कितना? 2 लाख करोड़। है इंडिया में कोई और ऐसा जो 2 लाख करोड़ रुपए लगाएगा? जिंदगी लग जाती है। 2 लाख करोड़, और 2 लाख करोड़ लगाने मिस्टर मुकेश अंबानी के सामने, फिर से कम कर देंगे रेट, आओ, सारा इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा, कोई नया प्लेयर नहीं आने वाला। आपने दोस्तों वो एक एनालिसिस पढ़ा होगा ना जिसमें वो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, देयर इज नो थ्रेट, देयर इज नो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। बताओ कोई एंट्री करेगा? छोटे मोटे 2, 5, 10 हजार की कैपिटल से टेलीकॉम कंपनी शुरू नहीं होती है। देश भर में टावर लगाने पड़ते हैं। आपने सोचा कि चलो मैं इस एरिया में टावर लगा दूं, इस एरिया के लोग सेम नहीं, पूरे देश भर में आपका जाल बिछाना पड़ेगा और उसमें कितना सारा इन्वेस्टमेंट लगता है। तो देयर इज नो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, बस जो प्लेयर हैं वो पक्के हो गए। तो ये फ्यूचर, तो ऐसी सारी सोच डेवलप दोस्तों हम कहाँ पर करते? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। और मैं कह रहा था आपको कि व्हाट्सएप ने आखिर फ्री में क्यों दिया, अमेजॉन आखिर लॉस खाकर भी क्यों अपनी एप्लीकेशन चलाता है, रिलायंस जियो ने आखिर लॉस में क्यों दिया? बिकॉज देयर ऑब्जेक्टिव वॉज नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट देयर ऑब्जेक्टिव वॉज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो विच वन इज द सुपीरियर ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? और ये राज की बात जितने सारे बड़े प्लेयर हैं वो जानते हैं। जोमेटो, उबर ईट्स, इन सब ने आपको शुरुआत में क्या ऑफर दिया, राइट? कि आप तो किसी भी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की कोई सी भी डिश आप ऑर्डर करें, अगर वो वहां पर 300 की मिल रही है तो हम आपको 200 में वो दे देंगे। लॉस खाकर भी उन्होंने अपने आप को चलाया। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर्स कैप्चर करना चाहते थे, और एक बार कस्टमर उनके हाथ लग गए तो फिर अब वो कोई फ्री डिलीवरी आपको नहीं देते, उल्टा वो डिलीवरी का चार्ज ले लेते हैं, राइट? तो अब वो पैसा कमाना शुरू कर रहे हैं, राइट? सो देयर ऑब्जेक्टिव वाज ओनली एंड ओनली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पता है किसका ऑब्जेक्टिव होता है? कॉस्टिंग सब्जेक्ट का। कॉस्टिंग सब्जेक्ट वेल्थ की बातें नहीं करता है। कॉस्टिंग किसकी बात करता है? कॉस्ट कम करो, रेवेन्यू ज्यादा करो, नेट प्रॉफिट ज्यादा निकालो। लेकिन हम तो उससे भी ऊंची बात कर रहे हैं, क्या? Wealth maximization, right? Now you know financial management is procurement of funds, effective utilization of those funds to achieve the basic objective of wealth maximization. अभी समझा क्या wealth maximization? Wealth maximization अभी समझ में आया क्या? हाँ, क्या आपका जिंदगी में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? नहीं, छोटा ऑब्जेक्टिव है, छोटी सोच है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपको उस पीरियड में तो प्रॉफिट कमा कर देगा, लेकिन जो बड़ा सारा फॉर्च्यून हमारा इंतजार कर रहा है वो कहाँ करता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में करता है। समझे क्या दोस्त? ओके दोस्तों, हम आते हैं यहाँ पर, हमारा सिलेबस देखते हैं कि आखिर ये किस तरीके से प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ दोज फंड्स पर डिपेंडेंट है। यहां पर जब मैं लेफ्ट साइड की बात करूंगा, ये जो लेफ्ट साइड है दोस्तों, ये लेफ्ट साइड किससे रिलेटेड होगी? प्रोक्योरमेंट ऑफ
funds, liabilities, right, is all about procurement of funds. And the right side, which means asset side, is about effective utilization of those funds. और इन सब का जो net हमें रिजल्ट चाहिए वो क्या चाहिए हमें, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब हम यहाँ पर एक एक करके हमारे टॉपिक्स से हमारा साक्षात्कार कर लेते. दोस्तों सबसे पहला टॉपिक ये रहा अब हमारे सामने, जो कि किससे रिलेटेड होगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से रिलेटेड होगा. राइट, ओके. तो दोस्तों ये आया पहला टॉपिक हमारे सामने, कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग. टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग. टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग में हम सीखेंगे कि आखिर हम किन किन सोर्सेज से फंड प्रोक्योर कर सकते. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि आपकी सीए बनने के बाद जॉब लगी रिलायंस इंडस्ट्रीज में. मिस्टर मुकेश अंबानी ने आपसे कहा, मिस्टर सीए वी नीड 25,000 करोड़ रुपीस. सो यू शुड नो कि किधर किधर से पैसा आ सकता है. जैसे कुछ तो ट्रेडिशनल सोर्सेज आपको पता ही, वी कैन रेज इक्विटी, वी कैन रेज डेट, bonds, right, और we can raise funds from long term bank loans, right, हम कमर्शियल बैंक से भी लोन ले सकते हैं. राइट, और भी कुछ सोर्सेज होते हैं फंड्स को प्रोक्योर करने के. आपने सुना होगा वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल, आपने सुना होगा प्राइवेट इक्विटी, आपने सुना होगा एंजल फंड्स. ऐसे कुछ सोर्सेज रहते हैं. राइट, तो दोस्तों आखिर क्या सोर्सेज होते हैं, इसका नॉलेज एक सीए को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए. वो हम कहाँ पर सीखेंगे, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग में, जहाँ पर हम देखेंगे व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज जहाँ पर से हम पैसा लेकर आ सकते हैं. राइट, और ये तो मैंने कुछ ही आपको नाम बताए दोस्तों. FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. आपको पता है अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, चलो बोलो यार. अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, 10%, 12%, बोलो ना यार कितना है, कुछ भी बोलो. ये तो अभी इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए हैं, नहीं तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 12% हुआ करते थे. अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट कई बरसों से 4 to 5% के बीच में, कितना, 4 to 5%. आपको 3.5% में भी अमेरिका में लोन मिल जाता है अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है. तो कितना, 3.5%, कुछ नहीं लगता है हमारे आगे 3.5%. 3.5% इज नथिंग. वहाँ पर 3.5% में लोन मिल जाता है. तो हमारे देश की कंपनीज पता है क्या दिमाग लगाती हैं कि यहाँ से पैसा रेज करो, उसकी बजाय तो कहाँ से पैसा रेज करो, अमेरिका से पैसा रेज करो. सर क्या कारण है कि वहाँ पर इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पैसा ही पैसा. और जहां पर पैसा ही पैसा इतना होगा तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगी. राइट, तो दोस्तों वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम है, तो इसलिए काफी सारी कंपनी फॉरेन से लोन लेती है. राइट, तो उसके लिए हमें फॉरेन से लोन लेने के आखिर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में पता होना चाहिए. वो हमें सिखाता है हमारा पहला चैप्टर, क्या, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग. ओके दोस्तों, इसके बाद दूसरे चैप्टर का नाम बताइए मुझे, क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. मिस्टर मुकेश अंबानी ने आपको कहा, मिस्टर सीए हमें 25,000 करोड़ रेज करने. हमने कहा मिस्टर मुकेश अंबानी वी कैन रेज दिस मनी थ्रू इक्विटी, थ्रू डेट, थ्रू कमर्शियल बैंक, और वी कैन रेज थ्रू फॉरेन. देन ही विल आस्क, बट देन फ्रॉम विच सोर्स शैल वी रेज द फंड्स. नहीं, सोर्सेस इतने सारे हैं लेकिन पैसा आखिर कहां से रेज करें. तो इसका जनरल नॉलेज से क्या जवाब आता है, वहां से पैसा रेस करो ना, फिर जहां से हमें पैसा कम में मिल रहा है ना. आपने देखा होगा ना, हमें तो पैसा जो भी देगा वो उसके बदले में कुछ ना कुछ हमसे लेगा. तो आखिर कौन से सोर्स से हमारी चीपेस्ट फंडिंग हो रही है, तो उसके लिए आपको हर सोर्स का क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा. दोस्तों चैप्टर का नाम क्या है, आपको हर सोर्स का क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये कैलकुलेशन करना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए. राइट, क्योंकि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में आपको ये तो पता ही होना चाहिए ना कि सोर्सेस क्या क्या है और हर सोर्स से पैसा रेस करने की कॉस्ट क्या है. राइट, तो सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग हम कहां सीखते हैं, चैप्टर 1 में. देन इन चैप्टर नंबर 2 वी लर्न अबाउट हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. ठीक है, जब आप इक्विटी से भी पैसा रेस करते हो ना तो उसकी कुछ कीमत होती है, उसको डिविडेंड देना पड़ता है, उसको शेयर प्राइस में अप्रिसिएशन की एक्सपेक्टेशन होती है. राइट, जब आप बैंक से भी लोन लेते हो तो वो हमसे इंटरेस्ट लेते हैं, है ना.
सर ये तो चैप्टर हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं बता देता हूँ आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। सर आप तो सवाल पूछो, फॉर एग्जाम्पल बैंक से लोन लिया। हाँ मैंने कहा बैंक से लोन लिया, सर बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। मैंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। तो सर आ तो गया जवाब, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। क्या इतना आसान होता है? क्या बैंक आपसे बाकी सारे नाटक नौटंकी नहीं करवाते, जैसे प्रोसेसिंग फी? क्या प्रोसेसिंग फी भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हिस्सा होना चाहिए? जी हाँ होना चाहिए, क्योंकि वो कॉस्ट हम बेयर कर रहे हैं। जब आप फॉर एग्जांपल होम लोन लेने जाते हो तो होम लोन का ब्याज तो चुकाते ही चुकाते हो, उनको प्रोसेसिंग फी भी आप पे करते हो, और आप अपना मकान उनको गिरवी रखते हो, राइट, कोलैटरल। उसके लिए आपको रजिस्ट्रार में जाकर उसका मॉर्टगेज करवाना पड़ता है। मॉर्टगेज करवाने के भी पैसे होते हैं और मॉर्टगेज छुड़वाने के भी पैसे होते हैं रजिस्ट्रार में। ये सारी कॉस्ट कौन जोड़ेगा, राइट? तो इन सारी कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो हम सीखते हैं दोस्तों हमारे सेकेंड चैप्टर में, कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ रहा है क्या, राइट? ओके, फिर दोस्तों इसके बाद हम आते हैं हमारे थर्ड चैप्टर पर। थर्ड चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर दोस्तों, यहां पर हम पूंजी के ढांचे के बारे में बात करेंगे, यानी जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है उसमें हम इक्विटी से भी पैसा ले सकते हैं, हम डेट से भी पैसा ले सकते हैं, राइट? वैसे आपके जनरल नॉलेज से बताइए कि कहां से पैसा सस्ते में मिलता है? इक्विटी से पैसा सस्ते में मिलता है, डेट से पैसा हमेशा सस्ते में मिलेगा। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि रिस्क भी डेट के केस में कम होती है। फॉर एग्जाम्पल यार, मैं कंपनी शुरू कर रहा हूँ और मैं आपसे बोलता हूँ ये देखो दोस्तों नया स्टार्टअप है, अभी इसका कुछ भी हो सकता है और मुझे उसमें 1 करोड़ रुपीस की जरूरत है। लेट से 50 लाख मैं लगाऊंगा, 50 लाख आप लगाओगे, और मैं आपसे कहता हूँ व्हाई डोंट यू बिकम माई इक्विटी पार्टनर? रिस्क का फील आया है ना? जैसे ही मान लो 1 करोड़ रुपए से हमने बिजनेस स्टार्ट किया और 20 लाख रुपीस का लॉस हो गया, तो 20 लाख रुपीस में से 10 लाख का लॉस आपका और 10 लाख का लॉस मेरा, राइट? तो इक्विटी के केस में रिस्क ज्यादा होती है, राइट ना? किसको? मुझे, कंपनी को ज्यादा रिस्क है, आपको इन्वेस्टर्स को ज्यादा रिस्क है। आपको इन्वेस्टर्स को ज्यादा रिस्क है ना। व्हेन यू गिव मनी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी यू टेक मोर रिस्क। आपने बोला सर क्यों ना ऐसा करे, आप जो आपके 50 लाख लगा रहे वो इक्विटी के नाम से लगा दो, और हम जो हमारे 50 लाख रुपीस लगा रहे वो हम डेट के नाम से लगा रहे। अब सारी रिस्क किसके ऊपर आ गई? मेरे ऊपर। कल को अगर वो जो 20 लाख रुपीस का लॉस होता है ना, वो पूरा किसकी कैपिटल से साफ हो जाएगा? मेरी कैपिटल से। अब मेरा अमाउंट 50 लाख की बजाय 40 नहीं बल्कि 30 लाख ही रह गया। आप तो अपने पूरे 50 लाख लेकर जाएंगे, यानी आपका भी लॉस होगा, लेकिन बहुत बाद में जब मेरा पूरा इक्विटी का पैसा साफ हो जाएगा तब आपका लॉस ट्रिगर होगा, लेकिन उसमें काफी समय, विच मीन्स यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ before your loss gets triggered, right? Okay, तो इसलिए क्योंकि अब डेट से पैसा देने के केस में आपकी रिस्क कम है तो आप रिटर्न भी कम चाहोगे, राइट? अब मैं कंपनी के एंगल से बात करता हूं, राइट? कंपनी के केस में इक्विटी से पैसा रेज करना ज्यादा सेफ है या डेट से पैसा रेज करना ज्यादा सेफ है? जो आप जवाब दोगे वो सही भी हो जाएगा। कंपनी, मैं हूं कंपनी और मैं इक्विटी से पैसा रेस करूं तो मैं सेफ हूं, या मैं डेट से पैसा रेस करूं तो मैं सेफ हूं? जब मैं इक्विटी से पैसा रेस करूं तो मैं सेफ हूं, क्योंकि कोई मेरे कंपनी की चौखट पर आकर खड़े होकर पैसा नहीं मांग सकता, बिकॉज ये तो इक्विटी है, मुझे उसको रिटर्न करने की भी जरूरत नहीं, और मैं 10 साल तक डिविडेंड नहीं दूं, कोई मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। लेकिन मैंने अगर डेट से पैसा लिया है तो मुझे उसको हर साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जब भी लोन का टेन्योर पूरा होगा मुझे कहीं से भी उसका पैसा अरेंज करना पड़ेगा, राइट? तो मैं एज अ कंपनी इक्विटी से पैसा रेस करता हूं तो मैं सेफ हूं, और डेट से पैसा रेस करता हूं तो मैं रिस्क पर हूं। ठीक है, इज दैट क्लियर? है ना? थोड़ा अलग अलग चेंज हो रहा है। इन्वेस्टर, एज एन इन्वेस्टर सोचोगे तो इक्विटी रिस्की है, क्योंकि पूरा पैसा डूब सकता है और आप जाकर मांग भी नहीं सकते हो। लेकिन डेट में आप सेफ हो एज एन इन्वेस्टर, इक्विटी इज रिस्की एंड डेट इज सेफ। लेकिन उसका अपोजिट तो कंपनी के केस में होगा। कंपनी के केस में इक्विटी इज सेफ बट डेट इज रिस्की, क्योंकि मैंने डेट ले लिया और मैं नहीं पे कर पाया तो मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा। अगर मैंने इक्विटी ली और सब डूब भी गई तो मैं बैंकरप्ट नहीं होऊंगा, राइट? ओके, तो फिर देखा जाए तो कंपनी को फिर हमेशा पैसा किससे रेज करना चाहिए?
इक्विटी से, लेकिन हमेशा पैसा इक्विटी से रेस नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि कल को फिर आपने उस 1 करोड़ रुपीस पर कुछ भी रुपया कमाया तो वो सब में बटेगा। डाइल्यूशन वर्ड आपने सुना होगा, राइट? फिर प्रॉफिट हम कितना भी कमा लें, मान लो मैंने 1 करोड़ रुपीस लगाकर 1 करोड़ रुपीस कमाए तो ये सब में बटेंगे। यही अगर मैं थोड़ा पैसा डेट से रेस कर लेता तो मुझे उसको पूरा प्रॉफिट का हिस्सा नहीं देना पड़ता, सिर्फ उसको 8% 10% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो देता और मेरा रिटर्न अब ज़्यादा होता, राइट? तो कंपनी क्या सेफ्टी सिर्फ देखती है या रिटर्न भी देखती है? रिटर्न भी देखती है, राइट? अगर वो सिर्फ सेफ्टी देखती तो फिर पैसा सिर्फ किससे रेस करती? इक्विटी से। लेकिन कंपनी ने कहा हमें रिटर्न भी तो कमाना है। लेकिन एक मिनट, जहां आप रिटर्न थोड़ा कमाने लग गए तो आपका रिस्क लेवल बढ़ता गया, क्योंकि 1 करोड़ रुपीस आप पूरा इक्विटी से लेते तो कोई रिस्क नहीं होती। अब आपने 10 लाख लेटेस्ट से डेट से लिया और 90 लाख इक्विटी से लिया तो हल्की फुल्की रिस्क आई, राइट? ये देखना इस तरफ मेरे हाथों का इशारा, 90 लाख है इक्विटी और 10 लाख है डेट। जैसे 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 मैं इक्विटी से कम पैसा रेज करूंगा और डेट से ज्यादा रेज करूंगा तो रिस्क लेवल कंपनी का बढ़ता जाएगा, लेकिन रिटर्न कमाने के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने डेट ज्यादा लिया तो उनको मुझे इंटरेस्ट देना है और फिर जो भी बचेगा वो सिर्फ 10 लाख रुपीस की कैपिटल पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। इज दैट क्लियर? लेकिन जैसे जैसे मैं इक्विटी कम करता हूं तो सेफ्टी कम होती है और रिस्क हमारी बढ़ती चली जाती है, लेकिन सेफ्टी कम होने के साथ साथ रिटर्न भी यहां पर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि मेरा कोई इक्विटी पार्टनर नहीं है। बस मैंने जो भी पैसा कमाया उससे सिर्फ मुझे ब्याज देना है 8-10%। अब मैं 100% कमाऊं तो वो सब किसका? मेरा। तो क्या हमें फिर 1 रुपए की इक्विटी रखनी चाहिए और 99 लाख रुपए का डेट रखना चाहिए? 99,99,999? नहीं, क्योंकि उस केस में आपके रिस्क लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। थोड़ा सा भी लॉस हुआ तो आप बैंकरप्ट हो जाओगे, राइट? तो एक ना ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर नाम का कॉन्सेप्ट होता है। क्या वर्ड्स बोले मैंने? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कि एक बैलेंस बनाता है कि आपको कितना इक्विटी रेस करना चाहिए और कितना डेट रेस करना चाहिए, ताकि ऐसा भी नहीं हो कि आपके रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाए और ऐसा भी नहीं हो कि आपके रिटर्न्स कम पड़ जाए। क्योंकि अगर आपने सोचा कि रिस्क कम करो तो फिर तो इक्विटी ज्यादा रेस कर लो, लेकिन रिटर्न कम मिलेगा। तो एक बैलेंस बनाना पड़ता है, वो हम सीखते हैं हमारे 3rd चैप्टर में, कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर, हाउ टू डिजाइन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर द कंपनी। इज दैट क्लियर? राइट? ओके दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा 4th चैप्टर कॉल्ड एज लेवरेजेस। इट साउंड्स वेरी टेक्निकल, हाईली टेक्निकल यार। क्या वर्ड आ गया सामने? लेवरेजेस। लेवरेजेस में पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज लेवरेजेस इज़ अ वेरी स्पेशल कॉन्सेप्ट, है ना? पर मैं बेसिक आपको बताना चाहूँगा। लेवरेज का मतलब होता है यूज़ ऑफ डेट टू एम्पलीफाई योर रिटर्न्स। यूज़ ऑफ डेट टू एम्पलीफाई योर रिटर्न्स, टू मैग्नीफाई योर रिटर्न्स। जब आप डेट का सहारा लेकर अपने रिटर्न्स को मैग्नीफाई करते हो, दुनिया इसे क्या कहती है? लेवरेज। खैर लेवरेज में भी काफ़ी सारी गहराई है, यानी कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने से कनेक्टेड होता है कि हमें आखिर कितना डेट रखना चाहिए, कितना इक्विटी रखना चाहिए, राइट? दोस्तों, जो अभी तक आपने और मैंने बात करी है वो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड थी? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, जिसमें सबसे पहले हमने क्या सीखा? व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ दो सोर्सेज ऑफ फंड्स, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड देन हाउ टू डिजाइन अवर कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड लेवरेज भी कहीं ना कहीं उसी का हिस्सा है, राइट? ओके। लेकिन अब जब पैसा इकट्ठा हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस पैसे को इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है कि हम मशीन्स खरीदेंगे, उसके लिए हो सकता है हम फैक्ट्री लगाएंगे, कुछ नया प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, राइट? तो दोस्तों, अब हमारा जो 5th चैप्टर है वो क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, यानी सबसे पहले हम सीखते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ दोस फंड्स। यहाँ पर हम सीखेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आखिर कैसे लेना, ठीक है? क्या ऐसा हुआ होगा कि मुकेश अंबानी जी को वन फाइन डे ऐसा मन में ख्याल आया कि क्यों ना देश में मेरी भी एक टेलीकॉम कंपनी हो, और वो भिड़ गए होंगे कि चलो टेलीकॉम कंपनी शुरू करें? या उसके पहले कुछ रिसर्च हुई होगी, कुछ कैलकुलेशंस हुए होंगे, राइट? 1-2 दिन की रिसर्च हुई होगी, 3 months, 6 months, मे बी 1 year की रिसर्च हुई होगी। आप जानते हो उस रिसर्च में क्या क्या किया गया होगा?
हिस्ट्री देखी गई होगी या फ्यूचर देखा गया होगा? फ्यूचर। क्योंकि किसी भी कंपनी की वैल्यू उसके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से नहीं होती, उसके फ्यूचर में वो क्या परफॉर्म कर सकता है ना, उससे होती है, राइट। तो दोस्तों मिस्टर मुकेश अंबानी जी ने क्या किया, उन्होंने देखा कि आखिर फ्यूचर ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री क्या है। उन्होंने क्या क्या देखा होगा? उन्होंने देखा होगा कि इस टेलीकॉम कंपनी को अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो इस टेलीकॉम कंपनी में मेरे पास कितने सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, यानी मेरा कितना मार्केट शेयर हो सकता है, मैं हर सब्सक्राइबर से आखिर कितने रुपए लूँगा, उस पर आखिर मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, और मेरा ये प्रोजेक्ट आखिर कितने साल तक चलेगा। फिर उन्होंने इस प्रोजेक्ट की वर्थ देखी होगी, तब जाकर उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। मैं आपको बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन बताता हूँ, उनकी इनकम देखना आप। 30 करोड़ सब्सक्राइबर्स, हर सब्सक्राइबर से आज की तारीख में तो कम ले रहे हैं, बट आई अज्यूम कि वो इजीली 500 रुपीज़ पर मंथ हमसे लेना शुरू करेंगे और लोग देंगे। मैं आपको बताता हूँ ना मेरा किस्सा, जब मैं सीए बना था और जब मैं मुंबई में था, यानी आई वॉज इन ईयर 2007 व्हेन आई वॉज इन मुंबई, तब आपको पता है मेरा मंथली टेलीफोन बिल कितना आता था? 3000 रुपीज़। नहीं मतलब आप ऐसा कुछ मत सोचो मेरे बारे में कि इतना ज़्यादा बिल आता था, मतलब क्या बात थी सर। 3000 रुपीज़ का मेरा बिल आता था जब मैं मुंबई में रहता था। फैक्ट है, मतलब कभी होगा मेरे पास ईमेल में बिल तो आपको बताऊंगा। 3000 रुपीज़ का बिल आता था मेरा उस वक्त। सर 3000 का बिल क्यों? क्योंकि आपको पता होगा पहले इतना लगता था, है ना, 2 पैसा पर सेकेंड इन सो ऑन। तो अगर मैंने किसी से 1 आवर भी बात करी, 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट्स, तो 60 मिनट के मेरे 60-70 रुपये बैलेंस में से डिडक्ट हो गए। अब लेटे से 70 रुपीज़ एक फ़ोन कॉल में मेरे डिडक्ट हो गए। लेटे से 2 आवर्स मेरा फ़ोन चला। आपको तो पता होगा काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनका फ़ोन पे ही पूरा बिजनेस चलता, मतलब फ़ोन ही फ़ोन आते हैं जाते हैं सो ऑन, राइट। तो डेली बेसिस पर 100 रुपये का खर्चा फ़ोन पर होना तो मामूली बात है। 100 मिनट बात करना, भाई किसी को अगर फॉर एग्जाम्पल हमने घर पर मम्मी पापा को ही फ़ोन लगाए तो बात हो जाती है ना यार। तो अगर उनसे 1 घंटा भी मेरी बात हो गई, शाम को ऑफिस से आने 60 रुपये गए, और कुछ इधर उधर बात हो गई यारी दोस्ती में तो 100 रुपये गए। 100 रुपये पर डे मल्टीप्लाई बाय 30 डेज हो गया मेरा 3000 रुपीज़ का बिल। वो 300 रुपये में ना सिर्फ बात करने को मिलती थी। उस ज़माने में इंटरनेट नहीं होता था, और मैसेज के तो अलग से, अभी तो मैं जोड़ ही नहीं रहा, उसका अलग से वाउचर लेना पड़ता था। 300 रुपये में 3000 मैसेजेस, डेली 100 की लिमिट। जब मैं उस वक्त आज से 12 साल पहले टेलीफोन बिल के 3000 रुपीज़ दे सकता हूँ, मतलब उस वक्त सैलरी भी थी, राइट, तो 3000 रुपये में उस वक्त दे सकता हूँ, वही चीज़ मुझे आज 300 रुपये में मिल रही है, उससे ज़्यादा। मतलब फ़ोन तो मैं उससे डबल लगा सकता हूँ, ट्रिपल लगा सकता हूँ। दिन भर मैं फ़ोन पर बात करूँ, इंटरनेट यूज़ करूँ, मैसेज व्हाट्सएप, ये सब कुछ नहीं था उस ज़माने में। तब मैं 3000 देता था, आज मुझे वही चीज़ 1/10 में मिल रही है। तो मिस्टर मुकेश अंबानी ने कैलकुलेट किया कि मैं अगर 500 रुपीज़ भी लूँगा ना, पीपल विल पे। अरे लोगों के बिजनेस चल रहे हैं यार फ़ोन पे, फ़ोन नहीं तो बिजनेस से कनेक्शन ही खत्म हो गया। आप कमा किससे रहे हो, राइट। आप एक दिन शॉप आपकी बंद रख लो लेकिन फ़ोन चालू रखना, राइट। तो दोस्तों 500 रुपीज़ पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स कितने हो गए? 500 इंटू 12 कितने? 6000 वो एक व्यक्ति से ले सकते हैं आराम से, हंसते हंसते देगा इंसान। 6000 रुपये साल भर के फ़ोन। हम तो फ़ोन खरीद लेते हैं यार 25,000 रुपये का जो 4 साल चलता है, तो क्या 6000 रुपये उस फ़ोन में जान डालने के लिए नहीं लेंगे क्या? 6000 रुपीज़, 6000 रुपीज़ एक सब्सक्राइबर से मल्टीप्लाई है। कितने सब्सक्राइबर रिलायंस जियो के? 30 करोड़। करो ज़रा 6000 मल्टीप्लाई है 30 करोड़, बहुत सारा हो गया। 6000 मल्टीप्लाई है 30 करोड़, ज़रा करो यार कैलकुलेट। ओ माय गॉड, कितना हो गया? हाँ, 1,80,000 करोड़ हो गया। 1,80,000 करोड़ का मिस्टर मुकेश अंबानी को रेवेन्यू दिखा, 1,80,000 करोड़ का। और ये तो सिर्फ मैं टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स की बात कर रहा हूँ। अभी वो जियो फी और जियो को ब्रॉडबैंड, ये तो सब अभी अलग ही हैं, सब अभी अलग है। मैं तो बेसिक की बात कर रहा हूँ यार, और 500 रुपये महीने की बात कर रहा हूँ मैं। इतना ईजिली कोई भी पे करेगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जहां इंसान को रेवेन्यू दिखा 1,80,000 करोड़ का रेवेन्यू, जो फ्यूचर में बढ़ेगा ही सही, कम नहीं होगा, तो
1 साल का ही रेवेन्यू हो गया यार इतना, तो 2 लाख करोड़ तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जो आज टेलीकॉम टावर लगाया उसको तो हम अगले 10 साल 20 साल तक यूज़ करेंगे, और धीरे धीरे वो इस बिजनेस को यूज़ करके दूसरे बिजनेस भी ग्रो कर लेंगे। ये सब हम कहाँ सीखते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, जिसका दूसरा नाम है कैपिटल बजटिंग। क्या? कैपिटल बजटिंग, जिसमें हम देखते हैं हम कहाँ, जहाँ हम कैपिटल लगा रहे हैं, हम उसका एक लॉन्ग टर्म बजट बनाते हैं कि हम कितना पैसा लगाएंगे और उस पैसे से आखिर कितना पैसा कमाएंगे, क्या वो प्रोजेक्ट हमारे लिए फायदे का सौदा होगा या नहीं, वो इवैल्यूएट करना हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस चैप्टर में। ठीक है, ओके। लेकिन जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स हम लगाएंगे ना, हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ रिस्क होती है। ये तो रिलायंस की किस्मत बहुत अच्छी है। क्या किस्मत, क्या होता है किस्मत बोलना तो गलत हो जाएगा, मेहनत करी, टैलेंट लगाया, स्ट्रैटेजीज लगाई, राइट उन्होंने, और जितने सारे वीक टेलीकॉम प्लेयर्स थे ना, सबको उठाकर मार्केट से बाहर फेंक दिया। आज से 4 साल पहले स्पाइस भी हुआ करता था, और वो यूनिनॉर भी हुआ करता था, और वीडियोकॉन भी होता था, और आप बता रहे टाटा डोकोमो भी होता था, राइट, सबको उठाकर उन्होंने बाहर फेंक दिया, राइट। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या करा, स्ट्रेटजी लगाई कि जितने वीक प्लेयर्स हैं, जितने कमज़ोर हाथ हैं, सबको उठाकर बाहर फेंको, सिर्फ बड़ी कंपनीज यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो आपकी मोनोपोली क्रिएट होगी और आप धीरे धीरे बढ़ाओगे, तो भी लोगों को वो पे करना पड़ेगा यार। जब हम 100 रुपये लीटर का पेट्रोल डलवा सकते हैं ना, तो हम 500 रुपये मोबाइल के लिए तो दे ही सकते हैं, क्योंकि हम सुबह उठते हैं तब भी हम मोबाइल यूज़ करते हैं, रात को सोते हैं जब भी हम मोबाइल के साथ ही सोते। तो सिंपल सी बात है यार, इसके लिए बेसिक चीज है, 500 रुपये कोई भी देगा। आप अगर आप कोई सा गेम भी खेलते हो ना, तो आज के तारीख में सारे गेम्स ऑनलाइन होते हैं, तो 500 रुपये आराम से देगा। ये उन्होंने कहाँ देखा? कैपिटल बजटिंग में देखा। लेकिन हर प्रोजेक्ट में रिस्क होती है, और रिस्क को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, राइट। तो वो रिस्क को आखिर कैसे कंसीडर करें, वो हम सीखते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, कॉल्ड एज रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, राइट। समझ रहे हैं ना? कोई सा भी आप जिंदगी में प्रोजेक्ट करने जाओगे, यू विल लुक एट बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन्स, रिटर्न्स एज वेल एज रिस्क। आपको जिंदगी में कुछ भी करना है, लेट्स से आप एक स्टार्टअप भी शुरू करते हो, तो स्टार्टअप में रिटर्न्स भी नजर आने चाहिए, और क्या रिस्क है वो भी नजर आनी चाहिए। रिटर्न्स कहाँ देखेंगे? 5th चैप्टर में। रिस्क कहाँ देखेंगे? 6th चैप्टर में। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ रहा है आपको सिलेबस क्या है यार, है ना? ओके ओके दोस्तों, क्या हमने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के बारे में बात कर ली? क्या हमने फिक्स एसेट्स के बारे में बात कर ली? यस, बिकॉज कैपिटल बजटिंग यानी फिक्स एसेट्स हुआ, राइट। ओके, अब इनको क्यों इग्नोर करें, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को, राइट? क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का मैनेजमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और फिक्स एसेट्स का मैनेजमेंट होता है। खैर दोस्तों, आपसे एक सवाल है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को दोनों को नेट ऑफ कर दूं तो जो नंबर आता है दुनिया उसे क्या कहती है? वर्किंग कैपिटल, राइट। और वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट आखिर किस तरीके से किया जाए, वो हम सीखते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर हम सीखेंगे वर्किंग कैपिटल को आखिर किस तरीके से मैनेज किया जाए। वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बिजनेस में आप काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ फॉरगो कर जाओगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक टेंडर निकला है, उस टेंडर के लिए हमें बिड डालनी है, लेकिन उस टेंडर में पहले हमें 10-20% काम करना पड़ेगा, तब जाकर उस टेंडर का प्रोग्रेस पेमेंट हमें मिलेगा। लेकिन अफसोस, हमारे हाथ में तो पैसा ही नहीं, हाथ में पैसा होना ज़रूरी है, ताकि जो उस वक्त अपॉर्चुनिटीज आए आप उसे ग्रैब कर सको। वो कैसे करना दोस्तों हम सीखते हैं कहाँ पर? 7th चैप्टर में, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जहां पर हम रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे, पेएबल्स मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे, कैश मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे, राइट। मतलब बहुत सारी लेयर्स है इस चैप्टर के अंदर, राइट। ओके दोस्तों, देखा जाए तो क्या हमने पूरी की पूरी बैलेंस शीट कवर कर ली है? हाँ जी, यस। साल भर जब आप बिजनेस को चलाओगे, आप इधर लायबिलिटीज मैनेज करोगे, आप इधर एसेट्स मैनेज करोगे, वर्किंग कैपिटल मैनेज करोगे, अंत में आपको नतीजा मिलेगा कुछ प्रॉफिट। हमें डेट का भी ध्यान नहीं रखना है, डेट को तो उसका इंटरेस्ट पे हो चुका होगा, लेकिन जब प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर टेबल पर हमारे सामने होगा, लेट अस से 500 करोड़ का प्रॉफिट हमारे सामने टेबल पर रखा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर। Now there is one decision pending. What is that decision?
कि आखिर इन 500 करोड़ को रख लिया जाए या बांट दिया जाए, आखिर कितना रख लिया जाए और कितना बांट दिया जाए, ये डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड नहीं दिया तो फिर वो आपकी कंपनी में फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट निकाल कर चले जाएं, आपके शेयर्स की वैल्यू डाउन हो जाएगी और आपकी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी, राइट। सो इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू कीप योर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैप्पी बाय पेइंग देम सम डिविडेंड्स। दोस्तों आखिर कितना डिविडेंड दिया जाए ताकि वो लोग खुश रहेंगे, वो हम सीखते हैं हमारे 8th चैप्टर में कॉल्ड एज डिविडेंड डिसीजंस। ठीक है, डिविडेंड डिसीजंस। देखा जाए तो दोस्तों मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अल्टीमेटली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 तरह के डिसीजंस ही लेने होते हैं। एक तो फाइनेंसिंग डिसीजंस, दूसरे होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और तीसरे होते हैं डिविडेंड डिसीजंस, राइट। ओके दोस्तों, जब आप पढ़ाई करते होंगे सीए फाउंडेशन में तो आप अपने फ्रेंड से जब बात करते होंगे तो आप उसकी प्रोग्रेस के बारे में जानना चाहते थे ना हर बार कि यार तेरा कितना हो गया यार, तूने लॉ कितना कर लिया, तूने अकाउंट्स कितना कर लिया, राइट। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप की परफॉर्मेंस को अपने फ्रेंड्स की परफॉर्मेंस से कंपेयर करें। इट गिव्स अस मोटिवेशन, हमें पता चलता है हम कहाँ पीछे हैं और हम कहाँ पर आगे हैं। और यही चीज़ एक बिजनेस के लिए भी तो ज़रूरी है। मिस्टर मुकेश अंबानी क्या करेंगे, अपने रिलायंस जियो कंपनी की परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे किससे, एयरटेल से। एयरटेल क्या करेगा, अपनी परफॉर्मेंस को वोडाफोन आइडिया से कंपेयर करेगा। तो दोस्तों ये कंपैरिजन करना हम सीखते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में कॉल्ड एज फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, रेशोज। क्योंकि रेशोज के बारे में, रेशोज कैलकुलेट करके ही तो हम परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। सर रेशोज क्यों कैलकुलेट करना ज़रूरी है, बिना रेशो के कैलकुलेशन के परफॉर्मेंस कंपेयर नहीं हो पाएगी। क्योंकि हर कंपनी का साइज अलग अलग रहता है, हर कंपनी का साइज अलग अलग रहता है, राइट। अब आप बोलोगे कि अंबानी जी ने 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और इस कंपनी ने 200 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो देखा जाए तो प्रॉफिट का अमाउंट तो उन्होंने ज्यादा कमाया, लेकिन एक परसेंटेज भी तो होता है, राइट। तो दोस्तों वो रेशियोज क्या करते हैं, अलग अलग जो डिफरेंट साइज की कंपनीज को रहती है उनको एक कॉमन ग्राउंड पर लेकर आते हैं और कंपैरिजन करवाते हैं। सर ये रेशियोज तो हमने 11वीं 12वीं में स्कूल में ही पढ़ लिया था, आपने जो वहां पर पढ़ा था वो था रेशियोज। जो आप और हम यहां करेंगे वो क्या है, रेशियो एनालिसिस। रेशियो कैलकुलेट तो कंप्यूटर भी कर देगा, रेशियो का एनालिसिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न। रेशियोज को देखकर भविष्य पहचानना, राइट। कुंडली में ग्रह तो बिठाना आसान है, लेकिन उन ग्रह का एनालिसिस करना, उससे फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, ये हम यहाँ पर सीखेंगे रेशियो एनालिसिस में, राइट। तो दोस्तों ये हमने देखे हमारे इन 9 चैप्टर्स जो कि हमें यहाँ पर कवर करने हैं। ओके आप क्या वहाँ पर चैप्टर्स के नाम नोट करना चाहते हैं, या वो आपके वैसे जो आपको किताब मिलेगी उसके अंदर सारे चैप्टर्स के नाम ऑलरेडी लिखे हैं, राइट। तो क्यों अब अपन लिखें, ठीक है। दिस आर द 9 चैप्टर्स व्हिच आर अल्टीमेटली रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट, टू यूटिलाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, राइट। आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थोड़ा आइडिया हो रहा है दोस्तों, है ना। ओके अब हम यहाँ पर कुछ हमारी क्लास से रिलेटेड बातें करना चाहते हैं कि सर आखिर आप टीचिंग मटेरियल क्या यूज़ करेंगे, नोट्स आखिर आप क्या यूज़ करेंगे। तो दोस्तों हमारी क्लास की आपको एक बुकलेट मिलेगी और उस बुकलेट के अंदर थ्योरी भी रहेगी और उसके अंदर क्वेश्चंस भी रहेंगे, राइट। तो दोस्तों वो जो बुकलेट आपको मिलेगी उसके अंदर आखिर में क्वेश्चंस कहाँ से लेकर आया हूँ, कहाँ से लेकर आया हूँ दोस्तों, स्टडी मटेरियल से लेकर आया हूँ। आपका अपना स्टडी मटेरियल जो सीए इंस्टीट्यूट इशू करता है, राइट, मैं वहाँ से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। फिर इसके बाद मैं प्रैक्टिस मैनुअल भी आपने कभी सुना होगा, राइट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रैक्टिस मैनुअल, उसके अंदर भी क्वेश्चंस होते हैं, मैं वहाँ से भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देन पास्ट एग्जाम पेपर्स, राइट, जो अटेम्प्ट हो जाते हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके सोल्यूशन होते हैं, राइट, वहाँ से क्वेश्चन आपको मिले। फ्यूचर एग्जाम क्वेश्चंस तो दोस्तों कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हो तो सकती है लेकिन आईसीआई ने अभी तक ट्राई नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं जहाँ पर आईसीआई ने अभी तक सीधा सीधा क्वेश्चन ही पूछा है, रिवर्स क्वेश्चन की भी उसमें पॉसिबिलिटीज बनती है और ऐसा आईसीआई हर 1-2 अटेम्प्ट में एक एक्सपेरिमेंट कर लेता है। जैसे अभी सीए फाइनल का जो एसएफएम का पेपर आया था उसमें म्यूचुअल फंड नाम का एक टॉपिक था। म्यूचुअल फंड में वो आज तक सीधा क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन अभी उन्होंने 8 मार्क्स का रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया और जैसे ही वो एकदम रिवर्स हो जाता है क्वेश्चन, अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हो
तो आप उस क्वेश्चन को एड्रेस कर पाओगे, नहीं तो एग्जाम के उस 3 घंटे में साइकोलॉजिकल प्रेशर, टाइम का कॉन्स्ट्रेंट, फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय कि उसको ऑप्शन में निकालने के, राइट। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, हम ऐसी चीज़ों पर भी फोकस करेंगे जो अभी तक हुई तो नहीं है लेकिन हो सकती है, राइट। दिस आर फ्यूचर एग्जाम क्वेश्चंस। देन आरटीपीस, आईसीआई पता है क्या करता है, नए क्वेश्चन जो लेकर आता है ना वो आरटीपी के थ्रू लेकर आता है ना। आरटीपी एक ऐसा मटेरियल है इंस्टीट्यूट की तरफ से, आरटीपी एक ऐसा मटेरियल है आईसीएआई की तरफ से जिसमें सबसे हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, यानी जो टफ या ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ना वो यूजुअली आरटीपी में आते हैं। देखो समझो इंस्टीट्यूट की लेयर क्या रहती है, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना वो स्टडी मटेरियल में मिलते हैं। सिंपल क्वेश्चन कहाँ मिलते हैं, स्टडी मटेरियल में। उससे थोड़े टफ क्वेश्चन सजेस्टेड आंसर में मिलते हैं, और जो सबसे टफ लेवल ऑफ क्वेश्चन मिलता है वो पता है कहाँ से मिलता है, आरटीपी से, रिवीजन टेस्ट पेपर से, राइट। तो वहाँ से भी हमारे नोट्स बने हुए, राइट। सप्लीमेंट्री मटेरियल यानी कि आईसीआई अपनी वेबसाइट पर क्या करता है, हर थोड़े थोड़े समय में कुछ कुछ क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चंस अपलोड कर देता है, राइट। सो दे आर आल्सो इनकॉर्पोरेटेड, एंड देन अदर फेमस ऑथर बुक्स, राइट। सर ये इतने सारे सोर्सेज से जो आप क्वेश्चन लेकर आए हो तो ऐसा सुनकर लग रहा है कि फिर हमको तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अगर आप सिर्फ ये बुकलेट्स कर लेंगे ना तो आपके आईसीआई के सारे तमाम सोर्सेज इसके अंदर कवर्ड है। सर फिर मतलब उसके अलावा हमको अलग से स्टडी मटेरियल नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों स्टडी मटेरियल तो मेरे पास भी रखा हुआ है। बेसिक टीचिंग टेक्निक्स मुझे भी आती है कि एक बेसिक टीचिंग टेक्निक कहती है कि वो पढ़ाओ ना जिसकी एग्जाम दे रहे हो और जिसने क्वेश्चन बताए कम से कम वो क्वेश्चन तो कवर करो। सो यार 100% ऑफ द स्टडी मटेरियल इज ऑलरेडी कवर्ड इन आवर बुकलेट्स। आपको उसके अलावा कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि जब भी हम कोई एक चैप्टर कंप्लीट करें, फॉर एग्जाम्पल हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया, तो आप इमीडिएटली उस चैप्टर का स्टडी मटेरियल तो एटलीस्ट पलट लें, ताकि हमें भी तो कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो सर इतना कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं तो वही कॉन्फिडेंस आप में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हाँ आई हैव कवर्ड दैट, राइट। सो वी आर ऑलरेडी गोइंग टू कवर देम इन आवर बुकलेट्स, बट यस वंस वी फिनिश द चैप्टर आई वुड रिकमेंड यू कि आप एक बार स्टडी मटेरियल पलट लेना, और सिर्फ पलटने की ही आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप देखोगे अरे ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, सारे क्वेश्चन तो ऑलरेडी कवर हो गए, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ दिस सोर्सेज, राइट। इसके अलावा आपको कोई बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर फिर कोई ऐसे ऑथर कुछ एक आध किताब बता दीजिए, नहीं कुछ नहीं करना है। आई वुड से कि 2 किताबें करने की बजाय तो एक किताब को ज़्यादा अच्छे से कर लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, बजाय कि मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करें, राइट। तो आपको मल्टीपल सोर्सेज को रेफर ना करना पड़े उसके लिए मैंने मल्टीपल सोर्सेज को यहाँ पर लेकर आ गया हूँ, ठीक है। ओके दोस्तों इसके बाद एक आखिरी डिस्कशन आपका और मेरा बाकी है विच इज़ रिलेटेड टू अवर टीचिंग मेथोडोलॉजी कि आखिर हम हमारी क्लास को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों जब भी मैं कोई सा भी आपको चैप्टर शुरू करूंगा तो सबसे पहले हम उस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे और उसका हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देखेंगे, राइट। यानी कि बेस बनाएंगे हम किसी भी चीज़ का, राइट, है ना। मैं सीधे आपको आकर ये नहीं बोलूँगा कि ये रहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये रहे 3 फॉर्मूला। हाँ पहले तो आधे घंटे आप और मैं आमने सामने बात करेंगे कि आखिर क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं आपको भी बताता हूँ कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हो उस प्रोजेक्ट से आप कुछ ना कुछ रिटर्न कमाओगे। कम से कम कितना रिटर्न कमाना है ये तो पता होना चाहिए। कैसे पता लगेगा? बाय कैलकुलेटिंग cost of capital, because we should at least earn more than our cost of capital, then only the project is worth doing, right। तो ये सारा हम ना पहले conceptual framework बनाएंगे कि आखिर हम जिंदगी में इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, वो समझाना आपको कि क्यों पढ़ रहे हैं। तो फिर तो यूं समझा दूंगा कि क्या पढ़ना है, इज दैट क्लियर, ठीक है। पर क्यों आना बहुत ज़रूरी है, राइट। कई बार ऐसा हो जाता है जैसे आपने सीए फाउंडेशन में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा या छोड़ा भी होगा। इसलिए पता है आपने क्यों छोड़ा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मेरे किस काम में आएगा। नहीं पता आपको सिर्फ ऐसा लगा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सिर्फ मैथ्स है और ये मैथ्स वालों का काम है, और हमको तो ये भी नहीं पता कि ये लोग भी क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि जब मैं बाहर निकलता हूँ, बाहर की दुनिया में मैं बाइक चलाता हूँ, इधर उधर देखता हूँ, तो मुझे तो कहीं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नजर नहीं आता। आपने स्टेटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा, आप जानते हो डेविएशन, हाँ कुछ कैलकुलेट हो जाता है, बट आपको ये नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, उसका यूज क्या है।
जब तक ना किस चीज़ का यूज़ समझ में नहीं आएगा ना, आप सिर्फ उसको किताबी ज्ञान के रूप में लोगे और फिर से आप उसको छोड़ दोगे। क्या आप में से किसी को पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों कैलकुलेट करते थे? उसका क्या यूज़ है? मैं आज आपको समझाता हूँ उसका क्या यूज़ है। जब आप शेयर मार्केट, सर शेयर मार्केट में स्टैंडर्ड डेविएशन, जब आप शेयर मार्केट में किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हो ना, तो उस शेयर में कितना रिटर्न मिल सकता है ये तो देखा ही जाता है। उस शेयर में इन्वेस्टमेंट करके कितनी रिस्क है ये भी पता की जाती है, और वो शेयर में इन्वेस्ट करने में कितनी रिस्क है ना, वो स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। सर पढ़ा तो उसको मैथ्स में था, हाँ वो काम में हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है। सर मतलब एक मिनट, स्टैंडर्ड डेविएशन से रिस्क कैसे निकलेगी? दोस्तों मेरी तरफ देखना, एक शेयर है, शेयर का ग्राफ ऐसा कुछ रहेगा, ओके ये रहा शेयर 1, और एक ऐसा शेयर रोलर कोस्टर राइड। बताओ किस में रिस्क ज्यादा है? रोलर कोस्टर राइड में, क्योंकि उसमें डेविएशंस। तो दोस्तों जब हम शेयर मार्केट में रिस्क को कैलकुलेट करेंगे, नंबर चाहिए ना, नंबर कहां से आएगा? बाय लुकिंग एट द डेविएशंस, बाय मेजरिंग द डेविएशन, राइट? क्योंकि जिस शेयर में डेविएशंस कम है मतलब उसमें रिस्क कम है, क्योंकि वो ज्यादा नीचे जाता नहीं, ज्यादा ऊपर जाता नहीं, मतलब उसमें रिस्क कम है। और जो अचानक से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, उसमें रिस्क ज्यादा है। लेकिन इस रिस्क को कैलकुलेट और क्वांटिफाई तो करना पड़ेगा ना, वो हम किसकी मदद से करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? काश मैं ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन सिखाने से पहले बता देता तो मंजर ही कुछ और होता कि हाँ यार जो हम करने जा रहे हैं उसका क्या यूज है, राइट? तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम सीखते तो हैं लेकिन सिर्फ किताबी एंगल से सीख लेते हैं, क्या पता है जिंदगी में कभी काम में आने वाले पता ही नहीं। जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अभी तक आपको यूज नहीं पता है, वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का भी यूज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होता है। सर पर हमने तो छोड़ दिया था उसको तो जितना हमारे काम का होगा ना उतना हम वापस से रिपीट करते हैं, है ना। बट हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तक नहीं जाते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फॉर्मूलाज बनते हैं, है ना। खैर वो आपको इंटरमीडिएट लेवल पे कम और फाइनल लेवल पर उसका ज़्यादा यूज़ है, राइट। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ जानना ना पहले ज़रूरी है। बताया कि मैं सीधा आकर आपको इंटीग्रेशन के वो रूल्स लिख दूंगी, ये रहे इंटीग्रेशन के रूल और ये रहे डिफरेंशिएशन के रूल। आप फिर सिर्फ उसको रूल समझोगे, ये तो समझोगे ही नहीं कि आखिर ज़िंदगी में कहाँ पर काम में आता है, राइट। सो टू डेवलप इंटरेस्ट इन एनीथिंग पहले ये तो पता होना चाहिए कि यार ये काम में कहां पर आ रहा है। वो हम क्या करते हैं, हर टॉपिक का सबसे पहले क्या बनाते हैं दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल देता हूं। क्या करता हूं, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल जो मैंने खुद ने बनाया है, यानी कि मैं एक सिचुएशन उठाऊंगा, क्वेश्चन उठाऊंगा, एक एग्जाम्पल लूंगा, कुछ डेटा लूंगा और उस डेटा पर हम उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। उस पर हम व्हाट इफ एनालिसिस करेंगे कि अगर इसकी बजाय ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता। यानी कि हम क्या करेंगे, अब एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल लेंगे। ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल होगा जो अगले आने वाले 10, 20, 30 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अपने आप में समेटे हुए होगा, जिससे कि हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, राइट। फिर उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का मौका, यानी कि अब हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जिस पर हम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे, राइट। ओके, अब क्या, इतना सब करने के बाद क्या, इतना सब करने के बाद मैं आपको बताता हूं क्या आलम होता है कि आपने देखा होगा कि सीए फाउंडेशन में ना आखिरी दिनों में गाड़ी गड़बड़ा जाती है। और आखिरी दिनों में नहीं, आखिरी दिन में गाड़ी गड़बड़ हो जाती है, यानी कि हम रिवाइज करने बैठते और रिवीजन ही कंप्लीट नहीं होता है। रिवाइज करने बैठे, हमने पूरा सब्जेक्ट उठा लिया, पूरी और रिवीजन ही, और ये छूट गया, अब एक काम करो इसको छोड़ो। ऐसा हुआ है क्या आपके साथ? यस। मैं आपको बताता हूँ क्या मिस्टेक हुई आपसे। आपने टाइम टेबल तो बनाया होगा, नहीं टाइम टेबल तो आप बनाते हो ना आपका। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी नवंबर में एग्जाम है तो आप सितंबर का टाइम टेबल बनाते हो, आप अक्टूबर का टाइम टेबल बनाते हो, राइट। नवंबर में जब एग्जाम है ना, एग्जाम के एक दिन पहले भी तो रिवाइज करना है, उसका टाइम टेबल कोई नहीं बनाता, जबकि वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सोचो कि आपने सीए फाउंडेशन में मैथ्स का पेपर दिया,
अगर आपको मैथ्स में आई एम अज्यूमिंग कि आपको 60 मार्क्स आए हैं ना, किसी को 55 आएंगे, किसी को 75 आएंगे, लेट अस अज्यूम कि आपको 60 मार्क्स आए। आप पढ़कर गए थे या नहीं गए थे आखिरी दिन? सर पढ़कर गए थे, यस। कंसीडर अ सेकंड सिचुएशन कि आपने आखिरी दिन रिवीजन ही नहीं किया होता और अब आप पेपर दे रहे होते मैथ्स का, क्या अब आपको 60 मार्क्स आते? कितने आते चलो बोलो। सर फिर तो 30 आते, क्योंकि कुछ फॉर्मूला हमने रिवाइज आखिरी दिन नहीं करा, हमने स्टैटिस्टिक्स का कुछ भी रिवाइज नहीं करा, या हमने लॉ, जैसे आपको लॉ है राइट, तो आपने वो कुछ भी रिवाइज नहीं करा। क्या आपको एग्जाम में 60 आते? जिसको 60 आए हैं ना उसको सिर्फ पता है कितने आते विदाउट रिविजन, विदाउट लास्ट डे रिविजन कितने आते? 30। मैं कह रहा हूं उससे कम भी आ सकते थे, पर इससे ज्यादा तो, क्योंकि याद ही नहीं रहता। अगर जो चीज आप आखिरी दिन रिवाइज करते हो ना बस वही याद रहती है, उसके पहले का कुछ याद नहीं रहता। तो नाउ यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ लास्ट डे रिविजन, कि आखिरी दिन का रिवीजन वह रिवीजन होता है जो मुझे जितने मार्क्स आएंगे उसका 50% मार्क्स मुझे मेरे आखिरी दिन के रिवीजन की बदौलत आएंगे, तो कम से कम वो तो मेरा प्लान्ड हो। तो लास्ट डे का रिवीजन प्लान होना बहुत ज़रूरी है, खास करके जब हम सीए इंटर और फाइनल में आते हैं जहाँ पर सिलेबस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब उस सिलेबस को रिवाइज करने के लिए टाइम तो उतना ही मिलना है, अब उतने ही समय में मुझे ज़्यादा सिलेबस रिवाइज करना है, तो हमारा लास्ट डे रिवीजन प्लान होना चाहिए। उसमें हमारे पास ये लिखा हुआ होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट को मैं कब करूँगा, किस दिन करूँगा और कितने समय में करूँगा। मतलब इस चैप्टर को मुझे 2 आवर्स देने, इससे एक भी मिनट मुझे ज़्यादा नहीं देना है, बिकॉज दिस इज जस्ट वर्थ इट। और उन 2 आवर्स के अंदर मुझे क्या रिवाइज करना है, यानी क्या कॉन्सेप्ट रिवाइज करने और क्या क्या क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, वो पहले से ही लिखा हुआ होना चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं, पलटते आते हैं और ये हाँ ये वाला इम्पोर्टेंट इसको कर लेते, ये तो बाकी ऐसा होता है राइट। ये ऐसा नहीं होना चाहिए राइट, पहले से आपका प्री डिसाइडेड होना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर यू राइट। उसको अगर आपने मिसमैनेज कर दिया तो फिर आप साइकोलॉजिकल प्रेशर में भी आ जाओगे, उधर हमारा परफॉर्मेंस भी बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों वो लास्ट रिवीजन प्लान अब आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ चुका हूँ। हम लास्ट रिवीजन यहीं पर ही प्लान बनाएंगे राइट, यानी जब हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे उसके बाद यू वुड नो कि आपको आखिरी दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, कौन से टॉपिक को कितना समय देना है, उसको कब रिवाइज करना है और उसके अंदर आपको क्या क्या रिवाइज आखिरी दिन करना है। आप उसमें हल्का फुल्का अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हो, मैं तो आपको एक स्टैंडर्ड प्लान दूंगा राइट। इसी के साथ साथ दोस्तों एग्जाम में देखो ये सबसे टॉप पे क्या लिखा हुआ है, LDR लास्ट डे रिवीजन राइट। देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज कॉमन पिटफॉल्स। आप जब एग्जाम में पास होते हो ना तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स बाउंड्री पर ही पास होते हैं, यानी अगर ये फाउंडेशन 400 मार्क्स का है तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, वो आपने निकालोगे ना मीन मीडियन मोड, तो मैक्सिमम स्टूडेंट पता है किसके इर्द गिर्द घूमते हैं, 200। यानी आप तो खैर खुश नसीब हो जो आप सीए इंटरमीडिएट में हो, आपके कुछ साथी आज भी सीए फाउंडेशन में हैं और ऐसा नहीं कि उनको 50-60 नंबर आए हैं, 180, 185, 190, यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल होते हैं। है आपका भी कोई ऐसा जान पहचान में यार जिसको 190 आए, सिर्फ 10 मार्क और आ जाते हैं? पता है वो 10 मार्क आराम से ला सकते, 10 क्या वो 20 मार्क और ला सकता था, बट ही कमिटेड सम कॉमन मिस्टेक्स इन द एग्जाम। यानी एग्जाम के बाहर निकल कर नहीं होता है कि ये कैसे, अरे यार इसमें ये तो क्या गलत हो गया, छोटा सा पॉइंट ऐसा हुआ है कि आपके साथ कभी, ये नहीं होना चाहिए यार। क्योंकि आप जब भी पेपर देकर आए और आपसे अगर एक क्वेश्चन भी छोटी सी गलती की वजह से गलत हो गया, बड़ी बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, छोटी सी गलती की, अरे और ये तो क्या पॉइंट मिस हो गया, 5 मार्क गए, एक पेपर में 5 मार्क गए, ऐसा हर पेपर में हो गया। 8 पेपर मल्टीप्लाई बाय 5 मार्क्स कितने होते हैं, 40 मार्क्स। और यही तो पास और फेल का डिफरेंस होता है, इससे ज्यादा मार्जिन से कोई नहीं जाता है। तो दोस्तों अगर वो 40 मार्क्स हमने बचा ली ना, तो बस वो फेल और पास का जो फासला है वो हमने तय कर लिया। मैं क्या करता था जब मैं पढ़ाई करता था ना, कुछ नहीं था, और छोटी सी मिस्टेक है जो मुझसे हो गई, मैं उन मिस्टेक को नोट कर लेता था पहले ही पेज पे, किताब के पहले पेज पर, कि ये यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो सकती है, और आखिरी दिन मैं उन 25 मिस्टेक्स को पढ़कर
जाता था, आखिरी दिन में उन 25 मिस्टेक्स को पढ़कर जाता था जो मुझसे हो सकती। अब जब आप पढ़ के ही जा रहे हो कि जो मुझसे मिस्टेक हो सकती, तो फिर कहाँ से मिस्टेक होगी। 5 नंबर बचा लिए, और ये पाँच नंबर ही आपने हर सब्जेक्ट में बचा लिया, आपका कल्याण हो जाएगा, पास हो जाओगे। क्योंकि पास और फेल के बीच में छोटा सा ही फासला होता है, और वो होता है कॉमन पिटफॉल्स का। हर बच्चा, आपको भी पता होगा कि आपके जितने फाउंडेशन में मार्क्स आए ना, आप उससे थोड़े से ज़्यादा ला सकते थे, पर कुछ मिस्टेक हो गई। वो छोटी सी मिस्टेक हमको अवॉइड करना है, नहीं तो आपकी मेहनत पर पानी फिर गया। आपने पढ़ा तो सही पूरा टॉपिक, लेकिन इसका क्वेश्चन करते वक्त आपसे गलती हुई। वो गलतियां ना हो उसके लिए मैं पता है क्या करता, इस क्वेश्चन में क्या गलती हो सकती है आपसे, या इस कॉन्सेप्ट में आपसे क्या गलती हो सकती है, वो मैं वहाँ पर लिखवा देता हूँ। तो उससे हमें एटलीस्ट एहसास रहता है कि हाँ यार, ये गलती एग्जाम में हो सकती है, जो शायद जाने अनजाने में आपको याद नहीं रहता, और आप एग्जाम में वो गलती करके आ जाते, राइट। एंड देन वी आर गोइंग टू ऑल्सो डू सम एडवांस लेवल क्वेश्चंस, क्योंकि जब आप एडवांस लेवल क्वेश्चन कर लेते हो ना, ऊंचे लेवल के क्वेश्चन कर लेते हो, तो नीचे लेवल के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही है कि जब हम 7वीं पढ़ रहे थे तो 7वीं कठिन लगती थी, लेकिन जब हम 8वीं में आए तो 7वीं आसान लगती थी, क्योंकि हमने ज़्यादा लेवल का पढ़ लिया है, तो नीचे वाले लेवल आसान लगते हैं। तो वैसे ही इंटरमीडिएट लेवल पर थोड़ा सा ऊपर लेवल का पढ़ लेंगे तो इंटरमीडिएट हमें आसान लगेगा, राइट। ओके दोस्तों, जब हम कॉपी बनाएंगे, मैं आपको बता देता हूं कि हम कॉपी आखिर किस तरीके से बनाएंगे। हम 2 कॉपीज बनाएंगे, एक एफएम की और एक इकोनॉमिक्स की। नहीं, एफएम की ही हम 2 कॉपीज बनाएंगे, जिसमें से एक होगी दोस्तों कॉन्सेप्ट नोटबुक, और दूसरी होगी हमारी सॉल्यूशन कॉपी, यानी कि प्रैक्टिस कॉपी। यानी कि हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, उसके फॉर्मूलाज देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, राइट, या उसकी कुछ की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, या कॉमन पिटफॉल्स देखेंगे, वो सब हम कहाँ लिखेंगे, कॉन्सेप्ट कॉपी में, राइट। और जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो कहाँ जाकर लिखने वाले हैं, सॉल्यूशन कॉपी में। इसका क्या फायदा है कि आखिर दिन साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं बनेगा। आखिर दिन जो लास्ट रिवीजन है ना, उसके लास्ट डे रिवीजन में आपको क्या करना है, क्या रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट कॉपी रिवाइज करना है, प्लस सम सिलेक्टेड क्वेश्चंस। हर चैप्टर के हम कुछ 2-3-4 क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, वो आपको आखिर दिन रिवाइज करना है, दैट्स इट। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बाद अभी 40 मार्क्स का इकोनॉमिक्स भी बाकी है, जो आपको रिवाइज करना है। आप सोच रहे हो 400 पेज का है आपका स्टडी मटेरियल में इकोनॉमिक्स, कितने पेज का, 400 पेज का। कैन यू थिंक कि आप 400 पेज का इकोनॉमिक्स रिवाइज करोगे प्लस 60 मार्क का एफएम रिवाइज करोगे, मैनेज हो पाएगा क्या? तो आपका प्लान तैयार होना चाहिए, वो उसकी नींव हम आज से ही रख रहे हैं। हम हमारी कॉन्सेप्ट कॉपी सेपरेट बना रहे हैं, ताकि आखिरी दिन ऐसा नहीं हो कि वो 2-2 रजिस्टर 300 पेज के पलटने पढ़ रही कि यार ये करना है और ये नहीं करना है, राइट। वी हैव कॉन्सेप्ट कॉपी जो हमें 100% रिवाइज करनी है। हम मार्क करेंगे LDR, लास्ट डे रिविजन क्वेश्चंस, और वो लास्ट डे रिविजन क्वेश्चन ही सिर्फ आपको आखिरी दिन रिवाइज करने हैं। Is that clear, right? Okay. तो दोस्तों, ये थी हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी। अब एक सवाल और आपके मन में चल रहा है कि सर आखिर ड्यूरेशन हमारी क्लास का कितना होगा। तो दोस्तों, ड्यूरेशन होगा रफली 65 लेक्चर्स एंड 3 आवर्स ईच। हम 3 घंटा पढ़ेंगे डेली, और 65 लेक्चर्स का हमारा ड्यूरेशन होगा, जिसमें रफली 50 लेक्चर्स हमारे एफएम में जाएंगे और 15 लेक्चर्स हमारे इकोनॉमिक्स में जाएंगे। Is that clear, right? Okay. दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन दिया, मैंने आपको बताया कि क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, एक बेसिक। अब अगर यहाँ पर आप कोचिंग की सीढ़ियों से उतरोगे और कोई आपसे पूछ लेगा व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तब आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाओगे। वो आपसे पूछेगा ओ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज जस्ट लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यू विल से नो, there is a big difference between profit maximization and wealth maximization। यार क्या बात कर रहे हो, राइट। दोस्तों, हमने यहाँ पर सारे टॉपिक्स भी देखे, फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हम एक एक चैप्टर को कवर करेंगे, व्हाट इज गोइंग टू बी आवर टीचिंग मेथोडोलॉजी, हम कैसे यहाँ पर कॉपीज बनाएंगे और क्यों बनाएंगे उसका भी मैंने आपको कारण समझाया है। एंड दिस इज आवर ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर्स, राइट। ओके, क्या आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो आप खुलकर पूछिए दोस्तों। हाँ बोलो यार। सर अगर क्लास चलेगी तो उसमें डाउट किससे क्या? सर अगर क्लास चलेगी तो हम डाउट आखिर कैसे पूछेंगे? दोस्तों, यहाँ पर घर जैसा माहौल है हमारी बैच में, आप बिंदास डाउट पूछना, है ना। मुझे पता है कि कभी कभी स्टूडेंट डाउट पूछने में ना हिचकिचाता है। क्यों हिचकिचाता है पता है? कि अब ये सामने वाला बंदा मेरी बैंड नहीं बजा दे,
मतलब ऐसा नहीं बोल दे कि यार ये क्या डाउट पूछ लिया यार तुमने फाउंडेशन में क्या है, मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँगा तुम फाउंडेशन का डाउट पूछना, राइट? क्योंकि यार मुझे पता है आप सीखने ही तो आए, नहीं आपको पहले से आता है तो फिर आप आते ही क्यों, राइट? तो आप कोई सा भी डाउट बिना हिचकिचाहट के पूछना, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका डाउट एंटरटेन करूंगा और कभी ऐसा इज्जत नहीं बिगाड़ दूंगा कि और ये कैसा डाउट तुमने पूछ लिया यार, क्या लेवल है, कैसे आ गए इंटर में, राइट? है ना, मेरे को पता है यार फाइनल वाले भी गलतियां करते, फाइनल में जब मैं पढ़ाता हूँ तो फाइनल वाले भी इंटर लेवल का डाउट पूछ लेते, बट मैं समझता हूँ कि उसको इंटर पास करने में और फाइनल की क्लास करने में 6-8 महीने का समय हो गया है, और जितने में एक बच्चा तो क्या मैं भी भूल जाऊंगा कोई सा फॉर्मूला अगर मैंने उसको 8 महीने तक रिवाइज नहीं करा। चलो ठीक है, मैं इतने समय से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे 1 साल तक याद रहेगा, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मैं भूल सकता हूँ, राइट? तो यू कैन ईजीली आस्क डाउट, है ना, ठीक है। बस ऐसा हो सकता है कि कोई सा मैं कॉन्सेप्ट अगर समझा रहा हूँ और आपने डाउट के लिए इशारा करा, आई वुड से कि 1 मिनट लेट मी कंप्लीट द कॉन्सेप्ट एंड देन वी आर गोइंग टू एंटरटेन योर डाउट। बस इतनी सी देरी हो सकती। और बताओ यार, और कोई मन में डाउट हो, पूछो, खुल के पूछो। चलिए, तो ये मैंने यहाँ पर दोस्तों आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन बताया, जिसमें हमने ये सारे एस्पेक्ट्स कवर किए, है ना दोस्तों। क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन का रहेगा, है ना। अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर से पूरा कंप्लीट 3 आवर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम रफली 1.5 आवर या 2 आवर पढ़ेंगे। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर वापस हम सेकेंड इनिंग्स खेलेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में।